One should do foundation very good, like thoroughly, Hmm. because that creates the basic concepts. And side by side, they should start reading newspaper, Okay. get a hand of what is in the news, get a hand of what is demanded. They should look on the PYQs so that they can align their preparation. आई थिंक एक थोड़ी देर पहले भी इन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे लगता है सारे एस्पिरेंट्स को ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, दैट ये जो आपने बोला ना कि मैं बाकियों से अच्छा हूँ, इस पे फोकस मत करो अभी फोकस ये है कि आई हैव टू लर्न। तो पहले तो प्रोसेस को हम इंजॉयबल बनाना ज़रूरी है, हैबिट का पार्ट बनाना बड़ा ज़रूरी है, एंड यू विल रियलाइज दैट अदर थिंग्स आर ऑटोमेटिकली फॉलोइंग इन प्लेस। एक तो काम जॉब से आ रहे हो तो आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है कि मैं ये वीडियो ख़त्म कर लूँ, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाऊँ। सो उस वे में एक डायरेक्शन हमेशा थी जो फाउंडेशन से मेरे को मिली। जैसे जतिन सर का पॉलिटी का मैं देखा था एनालिसिस, और स्पीति मैम का एथिक्स का भी देखा था। तो मुझे वहाँ से बस ये सीखने को मिला कि वो आंसर बिल्डअप कैसे कर रहे हैं। कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल को। अगर कंसोलिडेट नहीं होगा ना तो एंड में ऐसा हो जाएगा कि इधर ही मटेरियल पड़ा है, उधर ही पड़ा है और पढ़ नहीं पाएंगे, रिवाइज नहीं हो पाएगा। पढ़ना है, दैट शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द हैबिट। जैसे अभी आपका हैबिट है कि मोबाइल देखना है, एंड दैट सबकॉन्शियसली आ रहा है, तो उसी तरीके से सबकॉन्शियसली पढ़ने आना चाहिए, दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर हैबिट। कि मैं जब अभ्यास देने गया था, एक्चुअली सर ये हुआ था, मैं GS4 का एग्जाम दे रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट क्योंकि वो 1 2 3 लगातार हो चुके थे 3 दिन, और मेरे बहुत पेन हो रहा था। संधान में ऐसा होता है कि आप टॉपिक सब टॉपिक चूज कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, और उसमें PYQ एंड लास्ट 5-10 साल के जितने भी क्वेश्चन है सारा एक बैंक बना हुआ है हमारा। Hello everyone, we have Tushar with us. He had secured All India rank 216 this year, and we are going to talk about his preparation, and maybe the conversation will help a lot of aspirants who have just started preparing right now. So congratulations Tushar, first of all. Thank you sir, and hello everyone. I am Tushar, and I am Tushar Chauhan, and I secured 216 rank this year, and I am a graduate in civil engineering from IIT Bombay. And then I have worked for 3 years in Pune Metro, and then I started my preparation in 2022. I was the foundation batch in the foundation batch of year 2021, I think, and then this was my third attempt. In my first attempt itself, I cleared prelims, but I couldn't clear the mains. Then at that time my optional was civil engineering actually, where I scored low. So then I changed my optional and I switched to mathematics, and then I gave my 2024th attempt, in which I was not able to clear prelims, unfortunately. And this year I cleared the prelims both for CSE as well as forest, and also the mains for the CSE. Obviously I have cleared the exam, and also I have cleared the mains for forest. And this was my third attempt, first interview. Amazing. I want to go a little bit back compared, like when you started your class. So when did you actually think that this is something which you want to pursue, civil services examination? Like seriously gave a thought that this is something which you would like to pursue? Sir, I gave a thought in the year 2020. At that time, I was thinking to prepare for ESC Engineering Services exam. But that year, the notification came that railways came to this one, Okay. CSE. Okay. So I switched to CSE. That I thought that I should now pursue the CSE. So at that time, I was working, and but I also was not able to start the full preparation fully, because I also was doing some kind of a startup at that time. Okay. So in my 2022, I was fully dedicated to the CSE preparation, and I actually watched the classes which were fully recorded at that time. Okay. At that time, which were recorded already, had got recorded. So I watched that, and somewhere the inspiration came from my job itself, and one project which I did during my graduation under an IS officer, Professor Satish Agnihotri sir. And I was also I got a chance to be part of a session on circular economy, which was chaired by Niti Aayog member Dr. V.K. Saraswat. And there I also had some interaction with, there was an IS officer at that time. She was leading the DG shipping. So these interactions, and then the Pune Metro, where I was continuously interaction with my seniors who were railway service officers.
So that has inspired me to pursue civil services. Oh, amazing. So, one of the objective of this session is that uh, I would want that how aspirants right now can learn from your experience. So, I wanted to ask a question that how your understanding of the examination has evolved across years. For example, what you thought about this examination in the early days of your preparation, and how that understanding has evolved. Like now, this was your third attempt. How that has evolved across years. When I started my preparation, so at that time the content was not available because the YouTube was picking up, and in I think in 2022, the competition just increased multifold. Hmm. And even the answers, answer writing has shifted. Initially, the answers were very basic, like people used to just focus on keywords, committees, Hmm. and like I saw the topper copies of my one of my senior who secured AR1 in 2020, Shubham Kumar sir. And so if we see the change, so I would say the competition has increased very multifold. Hmm. Now we are very much focused on quality enrichment. Now we have to add data, graphs, also the marks, the way the marks are being given, that has been changed. More randomness has come from when I like in 2023 itself, the prelims paper was very tough. It was, and but for the first time, First time, suddenly yes. all of the questions Yes. were how many of the statements are Yes. correct. Yeah. And I would say at that time, being an engineer became a lucky for me because I was able to clear the CSAT somehow, Okay. and I was just 1 marks plus than the cutoff. Okay. So and I think there were people who had scored like 80, 90 even in that paper, and they were not able to clear the CSAT. Yeah. So CSAT was also very tough. CSAT was very tough. Yeah. So being from a mathematics background or engineering background, I was able to clear. So I was lucky in that. But I got a chance to give my first mains. And even in the mains, the questions, some questions were random that year also. And that randomness has increased. It has not stopped, but has increased multifold from that time only. I think both in prelims and mains examination. Yes, yes. This year, in fact, I think mains there was more questions which were more random. Like in GS1, they have asked a question related to civil servants and nationalism. Yeah. And AI and remote sensing in GS1 itself, Yeah. which were like topics of GS3. Yeah. Yeah. That is there. Okay. In your generally when I so because this many of the aspirants who are sitting here, many of the aspirants who are going to ask this, they will be very young aspirants, like they have just started their preparation. And what often happens is that there is so much of content available right now, as you rightly pointed out. अब तो बहुत सारा content है. Yes, sir. Right, बहुत and ज़्यादा। कुछ ज़्यादा ही है. I feel like that Yes. content थोड़ा ज़्यादा ही है. And फिर उसमें एक problem ये भी है that you have this like your first 3-4 months है. That is very crucial because that gives a direction to your preparation. And I have felt that many candidates they will say that the first 3-4 months they did few things which if they would want to go back, they would want to change that, right? So how to structure your preparation in the early stages, because in later part of life you get this clarity, you look at so many previous year questions, you attempt few papers, you attempt few lectures, and that gives you this clarity that even that first 3-4 months is also very crucial. So I wanted to ask this from you, that in the first few months, what you could have changed? Do you feel that you made like few mistakes, which if you'd go back, you'd want to change that? So regarding that, I would say that mistakes are part of this preparation, and you have. So I won't suggest anything which I could change. Because no one is perfect. So my way was that I should not have any kind of FOMO. So I just used to look on some content. If I see that it can be used in some way, then it is good. So initially, what I would suggest, owing that anyone can make mistakes. So if something I have to suggest is that one should do foundation very good, like thoroughly. Because that creates the basic concepts. Okay. And one should not move to answer writing or quality enrichment instantly. Okay. One should just focus on foundation first, and side by side they should start reading newspaper. Okay. Get a hand of what is in the news, get a hand of what is demanded. They should look on the PYQs so that they can align their preparation, because in those 3 to 4 months the person is very confused what to read, what to not to read. So in that case, the best thing is just to read.
डोंट थिंक इन द मैनर दैट आज ही खत्म करना है मेरे को। बेसिकली प्रोसेस को एंजॉय करना है। हाँ हाँ, यस एंड जो है, मीन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बाद में यस देखेंगे। यस जो प्रोसेस है, लेट्स हैव फन इन द यस। प्रोसेस, या सो एंड लेट्स टेक दैट फीडबैक एंड ट्राई यस, टू इम्प्रूव। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए एंड मे बी यूज चैट जीपीटी, एंड अब तो चैट जीपीटी आ गया है, सो मे बी यूज चैट जीपीटी, थोड़ा रिसर्च and try to see government websites in this period. Okay. Try to look over government documents, economic survey, budget, so PIB in fact, so that you get a understanding like what content is being aligned with the UPSC. At the end, the sources which UPSC will be taking is the PIB or government sources. Then also look over the magazines, just read them, don't try to cram them up, because at the end जो content है वो हम बना ही लेंगे जब हमारा vocabulary अच्छा हो जाएगा, when we are very well enriched with the value addition, but the basic concepts वो फिर बाद में नहीं बनेंगे। एक बार गलती हो गई, स्टार्टिंग के पीरियड में फाउंडेशन नहीं बन पाया है, सो माइंड के जो वो नेटवर्क्स हैं दैट विल टेक टाइम टू रीवायर देम। सो इनिशियली जो वायरिंग है वो कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स की या किसी भी साइंस एंड टेक या सबकी, दैट शुड बी डन। उसके लिए एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको बेसिक थोरोली रिवाइज कीजिए, और क्लासेस के साथ वी कैन हैव द अंडरस्टैंडिंग कि टीचर किस पे फोकस कर रहे हैं, किस टॉपिक से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सो दे हैव डन ऑल द PYQ एनालिसिस एंड थीम्स जो आते हैं उसके बेसिस पे अपना क्लासेस डिज़ाइन की है, और उससे आप उसके थ्रू यू कैन हैव अ मेक द बेस, द फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हमारा आई गेस सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं, सर आप भी सिविल इंजीनियरिंग से हो, कि फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, तो वही सेम यहाँ भी है कि फाउंडेशन में अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी की तो वो आर्किटेक्ट वो ऊपर का तो कर ही लेते हैं ना, लाइटिंग और वो क्वालिटी और वो सब एनरिचमेंट बाद में। बीटेक है, he has done his BTech in civil engineering from IIT Bombay, I am from IIT Delhi, तो बिल्कुल ही सही बात Yes, है। sir. तो वो क्रीमी और फसाड वाला जो काम है, क्वालिटी वाला, वो तो हम बाद में हो ही जाएगा, वो सेकंड स्टेज में आना चाहिए जब यू आर वेरी थोरो कि अच्छा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, PYQs पता चल गई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। अब करंट में अगर जैसे AI आ रहा है, अब 2013 में तो AI नहीं था और वो क्वेश्चंस में भी नहीं मिलेगा AI तब, बट आज की डेट में AI इंपॉर्टेंट है और वो आएगा ही आएगा, तो अब मुझे AI पे प्रिपेयर करना होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं PYQs में लिमिट कर रहा हूँ 2013 का कुछ कंटेंट सोच के उसको पढ़ने लग गया। वी हैव टू फोकस कि इंडिया की डायरेक्शन कैसे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल हमें विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनको फोकस करना चाहिए। जैसे PM का विजिट हुआ था फ्रांस में, PM सर का, सो देन उसमें दे विजिटेड ITR, सो क्वेश्चन जो इस साल आया था वो उससे इंस्पायर होके आ गया डायरेक्ट ITR वाला जो क्वेश्चन था। एंड इनफैक्ट एक प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था पूरे AI समिट पे। यस सर, AI समिट पे भी इंडिया वाज द चेयर अलोंग विद फ्रांस, प्रीलिम्स में उसमें भी क्वेश्चन था। COP में अभी उसका चल रहा था तब उस टाइम पे कि पेरिस का वो स्टॉक जो हम पंचामृत जो हमने 26 में डिक्लेयर उसका रिव्यू चल रहा था, मतलब सबके लिए था कि अब हम उनको एनालाइज करेंगे गोल्स को। सो उन्होंने डायरेक्टली यही पूछ लिया कि प्रोग्रेस क्या है, कमिटमेंट क्या है, अब क्या करना है इंडिया ने। सो आई गेस ये बस न्यूज़ पे वो होना चाहिए कि ये चल रहा है और ये इम्पोर्टेंट हो गया है, कुछ बड़े बिग न्यूज़ हैं उनसे क्वेश्चन इंस्पायर हो सकता है। ओके, तो आप बात करें थे फाउंडेशन की, सो आई वांटेड टू आस्क दैट particularly for candidate there is so much of content, so much of online content. In that scenario, like how does classroom help you, and like in terms of discipline or direction or answer writing, and how can student take that most of the foundation classroom? Sir, first of all, I am thankful for the course, foundation course, because that helped me very much, because जब मैं foundation लिया था तब मैं जॉब कर रहा था, एंड जॉब के साथ कंटेंट देखना और कहाँ से पढ़ना वॉज वेरी मतलब टफ, कि आप एक तो काम जॉब से आ रहे हो तो आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है कि मैं ये वीडियो ख़त्म कर लूँ, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाऊँ। सो उस वे में एक डायरेक्शन हमेशा थी जो फाउंडेशन से मेरे को मिली, एंड आई वॉज नॉट एबल टू वॉच द क्लासेस ऑनलाइन, वो तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। लाइव क्लासेस मैंने नहीं देखी है। इनिशियली आई ट्राइड जब स्टार्टिंग हुआ था बैच, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू, फिर वो बैकलॉग होता चला गया, तो फिर मैं 3-4 क्लासेस करता था कंप्लीट। ओके, मतलब कभी 2 कर ली, कभी 3 कर ली अपने पेस पे। एंड सो बट ये था कि उसमें एक डायरेक्शन थी कि मुझे ये क्लासेस करके एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि अब मैं अपनी जो NCERTs हैं उनको समझ सकता हूँ। अब मुझे एक आइडिया लग गया है कि ये इंपॉर्टेंट है। सो वो जो क्या कहते हैं स्पीड अप हो जाता है प्रिपरेशन।
अगर मैं वो नहीं कर रहा होता तो मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ता, फिर उसके बाद दोबारा से पढ़नी पड़ती समझने के लिए। बट देन क्लासेस के थ्रू ये होता है कि अब इन टॉपिक से फोकस करना है, इन पे हमें प्रिपेयर करना है। सो वो एक आइडिया लग गया था। देन जो डेली आंसर राइटिंग असाइनमेंट्स होते हैं, आई ट्राइड कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के करूँ हर दिन, मतलब नोट कि मैंने हर दिन किए हैं वो असाइनमेंट्स। जब लगता था कि इतना पढ़ लिया है, फिर 2 या 3 आंसर्स एक साथ लिख दिए। सो वो बहुत हेल्प किया इनिशियली जो आंसर राइटिंग बिल्डअप करने में। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैंने 2022 में जॉब छोड़ के आया था, एंड एट दैट टाइम देयर वर सम इश्यूज़ कि मैं पूरा क्या कहते हैं, मेंस के लिए मैं प्रिपेयर नहीं होकर पाया था उस बीच में अटेम्प्ट से पहले। एंड मेरे भाई की शादी भी थी। सो मैं दिसंबर तक बस एक दो टेस्ट सीरीज लिखा था तब। एंड और फिर मार्च से फिर मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चालू किया था। और सडनली एकदम से वही था कि यार आ गया प्रीलिम्स में, तो मेरे पास अब बहुत कम टाइम था। बट ये था कि कुछ आंसर राइटिंग में कर चुका हूँ, असाइनमेंट्स लिखता था, कुछ एक दो टेस्ट लिख लिए थे। सो उसके बेसिस पे फिर मैंने कुछ वही आई एम नॉट श्योर, मेरे को भी याद नहीं आ रहा सर का नाम, जो आई गेस ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। हर्ष सर नहीं, एक और सर हैं, राजेश सर। राजेश राजेश हाँ, सर, यस, राजेश उनके सर, आंसर राइटिंग क्लासेस होते हैं, तो हाँ, उनके मैं देखा था। हम्म, तब फिर मैं एनालाइज कर पाया था कि क्या क्या डायमेंशंस मेरे को पिकअप करने हैं। तो वहां से फिर वो जो मैंने मेंस अटेम्प्ट दिया था वो फास्ट फॉरवर्ड कर लिया था। अच्छा। तो उससे एक ये फायदा हुआ है क्लासेस से कि वो आप एक बेस होता है, बेस से आप स्केल अप कभी भी कर सकते हो। ओके, आई वांटेड टू आस्क ऑन द क्लासरूम पार्ट बिकॉज एक थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं क्लासरूम प्रोग्राम पे। क्रिटिकल इस सेंस में कि हाउ कैन क्लासरूम हेल्प यू, बट इन व्हाट वे इट विल नॉट हेल्प यू, समथिंग विच यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। मतलब ये भी बड़ा जरूरी है और हर एस्पिरेंट को जाना बड़ा जरूरी है दैट क्लासरूम इज गोइंग टू हेल्प यू, इट विल बिल्ड योर फाउंडेशन, बट the final selection finally happens when you do your own hard work, when you write answers, attempt questions. Yes. So how can that classroom program help you, but also what else you have to do so that you become better at this examination? So इसमें I would say that in UPSC preparation specifically, यहाँ पे हमें टीचर्स ही समझना चाहिए कि हाउ दे आर बिल्डिंग द कंटेंट, हाउ दे आर टीचिंग अस, हाउ दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ पे यू कैन नॉट, इसकी स्पून फीडिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पे हमें एनालिटिकल रहना पड़ेगा कि सपोज अगर कोई भी टीचर है वो ये बता रहे हैं कि हमें पेस्टल अप्रोच लगानी है, पॉलिटिकल इस तरह सोचना है, तो सोचने का जो थिंकिंग है और जिन टॉपिक से फोकस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एट देन। एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, यू हैव टू डू एनालिसिस। अब PYQ एनालिसिस तो अवेलेबल है, हर कोचिंग के हैं, और विजन IAS के भी मैंने उनके देखे थे, जो 3 इयर्स के एनालिसिस हैं, सारे अवेलेबल हैं। बट जब हम वो देखते हैं कि सपोज जैसे जतिन सर का पॉलिटी का मैं देखा था एनालिसिस, और स्पीति मैम का एथिक्स का भी देखा था, तो मुझे वहां से बस ये सीखने को मिला कि वो आंसर बिल्डअप कैसे कर रहे हैं, रेदर देन क्रैमिंग दो आंसर्स। मतलब उन्होंने दे दिया कि ये, बट वो हर बार सेम नहीं होगा, क्योंकि उसमें जब हम UPSC में आंसर लिख रहे होते हैं उसमें टाइम फ्रेम भी है, आपको वो 6 मिनट में लिखना है। और बाद में तो हम उसको जब डेवलप करते हैं पूरे आंसर्स को, वो सफिशिएंटली थॉट ऑफ टाइम से दिया गया है, बट हमें वो थॉट प्रोसेस समझना है कि वो आंसर लेकर कैसे आ रहे हैं और वो क्या किस तरह से इंट्रोसेट कर रहे हैं। हमें उनके एग्जैक्ट वर्डिंग्स को नहीं क्रैम करना है, हमें वो एनालिसिस समझना है, बिकॉज दे हैव अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। सो वो एनालिसिस हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, थोड़ा सा स्पेसिफिक आ जाते हैं, जैसे जो प्रीलिम्स है, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट हाउ randomness has increased, like there are questions on sports, और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ही known चीज़ पूछ रखी है, they're going into details of it, so you have like some random questions and some new type of option arrangement has occurred that how many of these statements are correct, and आपने तो 2023 दिया है, 24 दिया, and ये अभी ही शुरू हुआ है, this has started like in, I think they did this little bit of change in 2022 and then 2023 was completely a game changer. 2024, 2025, they have like, there is a mix of that, like what they asked in 2023 and then what they asked in 2022, and now they're asking like 50% of this and 50% of that here. But prelims is risky, and how candidates should approach prelims examination in terms of mock papers, in terms of revision, in terms of previous year questions, and इनमें अगर मान लो priorities देना हो, so what should be our priority to different things here? तो आई वुड से सर कि प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है वो हमें 3 स्टेजेस में रखना चाहिए। और इनिशियल जो है ऑब्वियसली जो NCERTs हैं दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. इवन इफ देर इज एनी स्टेटमेंट रिटर्न, खासकर हिस्ट्री में, एटलीस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनके और बायोलॉजी और एनवायरमेंट वाली जो एनसीईआरटी है साइंस में, इनकी तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और हर साल ही आते हैं. और वो भी तब पता चलेगा कि जब हम उसको पेपर को एनालाइज करेंगे. सो मतलब आई वुड से कि इसमें थोड़ा डिपेंड भी करेगा कि कौन सा टाइम बंदा दे रहा है, पहला दे रहा है, दूसरा दे रहा है. सो कमिंग अगर कोई बंदा फ्रेशर है, सो उसको तो पहले अपने, क्योंकि ही इज लाइक, उसको अभी समझना है कि चल क्या रहा है, तो उसके लिए वही है कि वो धीरे धीरे चले, एनसीईआरटीज पढ़े, फाउंडेशन पढ़े, साथ में एक पेपर को एनालाइज करे जो भी है. एंड कमिंग टू अदर एस्पिरेंट्स जो दे चुके हैं पेपर, सेकंड अटेम्प्ट दे दिया, थर्ड अटेम्प्ट दे दिया, प्री नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उन्हें तो करना चाहिए कि 2025 का जो पेपर है, 2024 का जो पेपर है, उसको अच्छे से एनालाइज करे कि कहाँ से क्वेश्चंस पिकअप किए गए हैं, वो क्वेश्चंस किस तरह के पूछ रहा है. मतलब सपोज कि डायरेक्शन किस वे में जा रही है, अभी एआई चल रहा है, ओके, तो एआई में समिट से पूछ लिया क्वेश्चन, आईआर में ब्रिक्स का समिट हुआ था तो उससे इन्फ्लुएंस होकर क्वेश्चन पूछ लिया. और जैसे विजन आईएएस है जो वो उनका वो निकालते हैं एनालिसिस पेपर का बाद में, तो वहाँ पे लिखा होता है सोर्सेज टेस्ट का और उसके पीछे का कंटेंट. तो ये तो सबसे पहले कर लेना चाहिए, जिससे ये पता चले कि हिस्ट्री में मैप के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लेसेस के क्वेश्चन आ रहे हैं. देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैम द प्लेसेस जो एनसीईआरटी मैप्स दे रखे हैं. सो मैंने ये अप्रोच फॉलो करी थी. मैंने पहले पेपर एनालाइज किए, 25 का किया था, मतलब नॉट 25, वो तो इस साल दिया मैंने, जब मैंने 23 का दिया था तो 22 का किया था, 21 का किया था. और उसमें ये देखा कि मैंने कि हिस्ट्री में खासकर स्पेसिफिकली साइट्स पूछते हैं, और वो कौन सी साइट्स है जो एनसीईआरटी में ही मैप्स में दे रखी है. तो फिर मैंने हिस्ट्री को उसी वे में प्रिपेयर किया जो उसमें एनसीईआरटी सारी 6 to 12 की जितनी भी थी, ऑब्वियसली 9 to 10 की नहीं क्योंकि तो वर्ल्ड की है, 6, 7, 8, 10, देन 11, 12 में जो है उसमें जितना भी वो था मैप्स थे, उनको एक जगह फोटो खींच के रख लिए थे और उनकी प्लेसेस को आई यूज्ड टू क्रैम अप. और उसमें जो भी कंटेंट था वो सबके भी मैं नोट्स बनाए थे, जो भी फैक्ट्स थे. और उसमें से फिर यही फायदा होता है कि काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी से. मतलब एटलीस्ट ये है कि एनसीईआरटी तो कर ही लो, क्योंकि फिर हिस्ट्री तो बहुत वाइड है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, किसी को नहीं आएगा. तो एक अप्रोच तो ये भी रहती है, जो सबको आता है वो मुझे आना चाहिए, और जो सबको नहीं आता उसमें से एटलीस्ट ये हो कि मैं वो टॉप 10% वाला हो जाऊं कि मुझे आता है वो. और जो किसी को नहीं आता उस पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, उतना अगर रैंडमनेस है. जैसे इस साल क्वेश्चन था एनवायरमेंट का, टेरेंटुला वाला, वो तो किसी ने भी, मतलब आई गेस बहुत कम लोगों ने देखा होगा, अनटिल जो डेली वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हो. इवन दो मैंने भी उसमें नेटफ्लिक्स का मैं पूरा देख के गया था, और एंड आई ट्राई टू सोल्व दैट क्वेश्चन, बट वो फिर गलत ही हुआ, बाद में पता चला. सो मैं पूरा वो देख के गया था नेटफ्लिक्स पे, जो एनिमल्स की जो होती है ना वीडियोस है, आवर प्लेनेट वाली डॉक्यूमेंट्री. और सो देन स्टेज 1 में बात करें जैसे, तो पहले एनालिसिस करना चाहिए पेपर का, बिकॉज हम पेपर सोल्व करने हैं, पीएचडी करने नहीं है इस एग्जाम के अंदर. एंड देन जब आपने ये कर लिया है और अपने अब आप पढ़ रहे हो, जो फर्स्ट अटेम्प्टर होगा ऑब्वियसली जो बेसिक नोट्स हो गए, फाउंडेशन हो गया, वो कर लिया. उसके बाद उसको पीवाईक्यूज करने चाहिए, वो भी लाइक 25 ईयर्स. सो जो पीवाईक्यूज होते हैं एटलीस्ट वन टाइम तो वो करने चाहिए 25 ईयर्स तक जो पूरे हैं. और उसको वन शुड उससे इंफॉर्मेशन अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि पुरानी इंफॉर्मेशन भी यूज हो जाती है, खासकर बायोलॉजी वाले में, एनवायरमेंट वाले में, और इवन प्लेसेस वालों में भी काफी. हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, यस, हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आर रिपीटेड. यस, उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है, ऑप्शंस होता है, दे गेट रिपीटेड मेनी टाइम्स. सो 25 ईयर्स तो एटलीस्ट होना ही चाहिए. और जब आपने ये कर लिया, आपका इन्फॉर्मेशन रेडी हो चुका है, देन अगर आप मार्च में आ चुके हो, तो मार्च से पहले आप अगर एनुअल मैगजीन जो है PT65 रिलीज हो चुकी है, तो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए रीड करने के लिए, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट कम्स इन द एग्जाम. क्योंकि आपने पीवाईक्यूज एनालाइज कर ली है, तो आपको पता है कि PT65 में मुझे क्या पिक करना है, हर चीज नहीं करनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है वो यूनेस्को, जैसे यूपीएससी में यूनेस्को साइट्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो मुझे पता है कि PT65 में मैं जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ यूनेस्को साइट्स के नोट्स बनाऊंगा. अब उसमें मुझे इन डेप्थ जाना पड़ेगा, अगर वहाँ पे सारी यूनेस्को साइट्स है, क्योंकि उनसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अजंता केव से हो गया, तो मुझे थोड़ा उसमें इन डेप्थ जाना पड़ेगा. तो वहाँ मुझे वो हो सकता है कंटेंट PT65 में दिया हो सकता है ना दिया हो, तो फिर मैं वहाँ पे गूगल रिसर्च करूंगा. बट एटलीस्ट मुझे पता होगा कि अगर कल को क्वेश्चन आए यूनेस्को साइट्स पे, क्योंकि पूछेंगे तो उन्हीं साइट्स पे जो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई साइट पे तो नहीं पूछेंगे. या फिर कोई नई साइट आ गई जो उसमें थी न्यूज़ के अंदर, वो लिखी होगी. सो नाउ यू नो दैट कि मैप में यूपीएससी मैप के क्वेश्चन पूछता है, तो हिस्ट्री जब मैं आर्ट एंड कल्चर वाला PT60 उठा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे साइट्स पे फोकस करूंगा सिर्फ.
एंड सिमिलरली जब यूपीएससी का पीवाईक्यूज में कोई भी कर रहा हूँ तो वहाँ से जो भी कंटेंट मुझे समझ आ रहा है कि यार ये एनालाइज करना है तो मैं उन्हीं को ही फोकस करूंगा PT65 में। सब कंटेंट मेरे को नहीं करना है उसमें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्योंकि आपके बहुत वैराइड इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई है सो दैट कुछ छूटे ना। बट यहाँ पे एक एस्पिरेंट की एक वो आती है कि यू डोंट हैव टू कंप्लीट 100% ऑफ द सिलेबस, यू हैव टू कंप्लीट दैट पार्ट जो वही मैं जो पहले बोला था वो 2 पार्ट कि आप टॉप 10% में तो आ जाओ जिसको सबको पता है, वैसे ज़्यादा पता है। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पता, तो इतने में तो आ जाओ, उतने को रिवाइज कर लो। देन जब आप तो इसमें वही अगेन अगर हम सोर्सेज प्रायोरिटाइज करें सो बेसिक NCERT एंड फाउंडेशन नोट्स, देन थर्ड इज फॉर करंट अफेयर्स, अगेन प्रीलिम्स के लिए मैगजीन PT65। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो मंथली मैगजीन्स तो आप एनुअल मैगजीन कर लीजिए, अगर आप कर पा रहे हो मंथली मैगजीन तो मंथली मैगजीन इज गुड, तो वो दोनों में से एक ही करना है। देन न्यूज़पेपर्स शुड बी फॉलोड, उनको क्रैम नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर कि मैं ये कंटेंट यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं अब इस स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं अपने नोट्स बनाता हूँ वैल्यू एडिशन के लिए न्यूज़पेपर से। पहले मैंने ट्राई किया है, वो सब मैं मिस्टेक्स कर चुका हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सब मिस्टेक्स कर चुका हूँ। तो पहले मैंने ट्राई किया है वो सब करने का, बट वो फिर ना रिवाइज होता है ना याद रहता है। और उससे बस इतना फायदा होता है कि सबकॉन्शियसली माइंड में पता है। तो अगर इसमें भी मैं 2 अप्रोच फॉलो करता, मतलब मेरे को जो लगती है कि न्यूज़पेपर के साथ बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। तो इसमें ये है, अगर आप नोट्स इस पर्पज से बना रहे हो कि आप कल को रिवाइज करोगे और वो याद रहेगा, तो वो तो नहीं होने वाला, मैं उसको रिवाइज कर लूंगा, अगर आप तो वो नहीं कर पाओगे। बट इफ़ यू वांट न्यूज़पेपर इसलिए नोट्स बना रहे हो कि क्योंकि मैंने लिख लिया है तो मेरे दिमाग में छप गई है, भले मैं रिवाइज भी नहीं करूँ, अब मुझे इन्फॉर्मेशन याद है। अगर उसके जैसे मेजरोना वाला क्वेश्चन था तो मैं उसका नोट कहीं पे तो लिखा हुआ था, तो वो क्योंकि लिख लिया था इसलिए याद हो गया, मैं उनको रिवाइज नहीं किया उन नोट्स को। तो मेरी हैबिट ये थी। कौन सा क्वेश्चन? एक मेजरोना चिप आई थी ना सर हाँ, बीच में, मेजरोना चिप पे क्वेश्चन क्वांटम का। क्वांटम वाला। हाँ, सो वो मैंने इसलिए लिख लिया था क्योंकि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि लिख लेता हूँ तो मुझे याद हो जाती है, याद रहती है। मैं वो रिवीजन के लिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो हो भी नहीं पाता है। तो मेरा एक आइडिया वही था, और सेम तो इसमें वो फिर पर्सनल कॉल है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कुछ लोग होते हैं सर जो डायरेक्ट एक बार रीडिंग करके उन्हें समझ आ गया सब कुछ, तो मेरे को तो नहीं था, मेरे को वो स्ट्रक्चर करके मेरे को चीज़ें समझ आती हैं, तो मैं कभी, लेकिन ऐसा रिजिड नहीं था मैं। जब पढ़ लिया न्यूज़पेपर तो मैं लिख लिए नोट्स। अब जैसे मैं काफ़ी दिन हो चुके हैं, मुझे भी 10 दिन हो चुके हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया हूँ, तो अब मैं बैक में जाऊँगा तो मैं सबके नोट्स थोड़ा ना बनाऊंगा, बस एक बार रीडिंग कर लूँगा क्या क्या न्यूज़ में चल रहा था, और फिर जब मार्च से स्टार्ट आ जाते हैं तब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हमें मैगजीन में फोकस कर लेना चाहिए क्योंकि वो सफिशिएंट है। एंड उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बजट, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस प्रीलिम्स के लिए, तो यही है। और देन हाँ ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज। सो मैं क्या करता था कि मार्च से मैं एक टेस्ट लिखना चालू कर दिया था। जब मैं 2020 पहला अटेम्प्ट दिया था तब तो मेरे को आता है नहीं आता, पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है नहीं पढ़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना टेस्ट चालू कर दिया था। मैं क्या करता था, मार्च से मैंने एक टेस्ट लिखना सुबह और उसको एनालाइज कर लिया, और फिर उसके बाद मैं लिख करता था PYQs, जो मेरी जो बुक थी उसमें से चैप्टर्स वाइज जो PYQs 25 ईयर्स। तो मेरे ये 2 टारगेट तो कंपलसरी थे कि मैं भले ही नोट्स रिवाइज कर पाऊँ ना कर पाऊँ, ये दोनों चीज़ मैं करता ही था। और जो टेस्ट सीरीज से इन्फॉर्मेशन आती थी उसको अपडेट कर लेता था, उसको अच्छे से एनालाइज करके। तो उससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती थी और PYQs से पता चलता रहता था कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों हैंड इन हैंड सिंक में चल रहे थे, और इससे ये फ़ायदा हुआ कि मार्च अप्रैल तक आते आते मैंने कुछ 45 to 60 टेस्ट कर लिए थे। अच्छा, हाँ, और देन उसको मैं रिवाइज कर लिया था। ओके, सो यू यूज लाइक टेस्ट पेपर जो है उसको एक कंटेंट की तरह भी यूज किया था कि देयर इज समथिंग, सम नॉलेज गैप इज देयर एंड उसको फिल करते हैं। यस, मेरे लिए मार्क्स मैटर नहीं करते थे, आ रहे हैं 80 ठीक है, वो मुझे ही पता है, इतना मैटर नहीं करते थे, 80 आ रहे हैं ठीक है, और मैं इतना रिजिडली कभी उन पे फोकस नहीं किया। इतना ह्यूमिलिटी होना चाहिए where you learn from your own, you have a self feedback mechanism, जहाँ पे आप खुद को फीडबैक लेते हो, खुद का फीडबैक लेते हो और उस पर वर्क करते हो। इतना ह्यूमिलिटी होना चाहिए, एंड तभी जाके हम बेटर होंगे एज अ कैंडिडेट। हाँ, सो और मार्क्स का भी मैंने एक टेबल बना रखा था 1 से लेके 60 तक टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं, और उसमें मैं लिख लेता था कि इतने 80 वही सेम स्ट्रैटेजी जो रहती है कि हम 3 स्टेजेस में पेपर को अटेम्प्ट करते हैं,
1 2 3, तो 1 में इतने क्वेश्चंस किए उसमें इतने गलत हो गए, 2 में इतने क्वेश्चंस किए इतने गलत हो गए, 3 में इतने क्वेश्चंस किए इतने गलत हो गए, 4 जो बिल्कुल तुक्के मार दिए उनमें इतने गलत हो गए, और फिर टोटल मार्क्स। सो थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे इस साल के पेपर में लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड एंड हाउ मच यू गॉट, बिकॉज यू हैव क्लियर्ड फॉर फॉरेस्ट आल्सो, यस सर। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड एंड हाउ लाइक थोड़ा सा एलिमिनेशन। तो फ्रॉम व्हाट आई कैन रिकॉल आई थिंक मैंने 90 प्लस तो किए ही थे, इतना मुझे याद है। 90 हाँ, क्वेश्चन 93 तो होंगे। ओके हाँ, आई रियलाइज इन दिस अटेम्प्ट ओनली दैट वी हैव टू फोकस ऑन 90 प्लस क्वेश्चंस, Okay. नहीं तो होना मुश्किल है। हम्म, मतलब आई गेस ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। हम्म, और इस साल जो मैंने डिफरेंट किया यही किया कि 25 ईयर्स की पीवाईक्यूज तो मैंने कर ही लिए थे ऑलरेडी, हम्म, तो उनके फिर मैंने अगेन 10 ईयर वाला जो विजन का डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने अलग से किया है पीवाईक्यूज। मैंने अपने उस पर डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे कि कैसे मैंने हर क्वेश्चन पे कमेंट डाले हुए हैं कि इसमें ये कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, किस तरह के आंसर्स में ये इन्होंने ऑप्शन कैसे सेट किए हैं, और कब अगर हम लॉजिकली मुझे कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो मैं किस लॉजिक से सोचूंगा, और क्या एनिमल्स खासकर इन सब में क्या क्या लॉजिक हमें सोचना चाहिए। तो उसमें तो जैसे कमिंग टू जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट बहुत टफ रहता है एनिमल्स का, बहुत वो जो है। पूरा स्पीसीज वाला सेक्शन, हाँ, तो yes, yes. दिस इज अ रिसेंट फिनोमेना, यस ये पिछले 5-6 साल में हुआ है, हाँ, where there is a sudden focus on like asking too many questions from species, यस and वो भी कहीं से भी पिक कर लेंगे, हाँ. like there is a mammal from Madagascar and उसके बारे में पूछ Yes, लेंगे yes. आपसे, तो ये है। सो इसमें मैं बताता हूँ मैंने कैसे एनालाइज किया था। तो मैंने पीवाईक्यू एनालाइज की है, हाँ. देन आई रियलाइज कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सब तो रट नहीं सकते हम्म. कि ये वाला डिसीजन नंबर कहाँ पे है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं वो पढ़ता हूँ, वो देखता हूँ। मैं मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया, नेटफ्लिक्स पे एक उसकी आई थिंक डेविड एटनबर्ग उनकी वो है, और उसमें Attenborough, हाँ हाँ. वर्ल्ड की जितनी भी एनिमल स्पीशीज है उनके बारे में बताया अच्छे से। तो मैंने उसमें पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करी। हाँ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। जब एनिमल्स के पैटर्न को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि एनिमल्स जो है ना डिवाइडेड है एक्चुअली ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में। सो ओल्ड वर्ल्ड यही है एशिया अफ्रीका वाला पार्ट, और न्यू वर्ल्ड है वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला पार्ट। तो जो एशिया अफ्रीका के एनिमल्स हैं वो मैक्सिमम, क्योंकि वो कनेक्टेड है, तो उनकी जो स्पीशीज हैं दे आर सेम लगभग उनके फीचर्स जो है, मतलब जैसे लायन है, टाइगर है, वो यहीं पे मिलेगा सिर्फ एशिया अफ्रीका में, वो नॉर्थ अमेरिका साउथ में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ के प्यूमा और जैगुआर हैं कैट स्पीशीज, क्योंकि कॉन्टिनेंट में एक डिवाइड है उसकी वजह से वहाँ की स्पीशीज अलग हुई है। सेम मंकीज में भी है, उनके मंकीज अलग हैं, इनके मंकी इधर के जो एप्स, जो एप है, एप इधर ही मिलता है अफ्रीका और इधर ही, वो उधर नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो पैटर्न था, मैंने ये कैटेगराइजेशन एनालाइज करी थी, और उसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज किया था कि यार मेरे को ये बताओ कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा मिलता है, और ये पैटर्न में अंडरस्टूड करने की कोशिश करी। जब ये कर लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, एप का अगर कोई लिख दे कि भाई क्या नाम है ब्राजील, तो यू कैन डायरेक्टली से कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि एप ऐसा है जो वहीं मिलता है अपने इधर। सो ये वाले जो पैटर्न्स है ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये लॉजिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोरिल्ला कहाँ मिलता है, कहाँ मिल ही सकता है वो, और एंगटन कहाँ ही मिल सकता है। जैसे जो एंडेमिक स्पीशीज होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक, वो वहीं मिल सकते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती जानवरों में, मतलब बड़ा एरिया कनेक्टेड ना हो, तो इसलिए आइलैंड्स जो होते हैं वहीं पे हमें ज़्यादातर एंडेमिक स्पीशीज मिलती है जहाँ पे नेम दिया होता है। जैसे टाइगर है, टाइगर कनेक्टेड है इसलिए वो साइबेरिया तक जा सकता है, वो रॉयल बंगाल टाइगर तो है ही, इंडिया में भी हर जगह मिल सकता है मैक्सिमम जगह पे, बिकॉज वो कनेक्टेड है। अब टाइगर, और जो जैसे इसके लिए जावा टाइगर अलग दिया हुआ है क्योंकि वो एक आइलैंड का टाइगर है, नहीं तो उसका नाम जावा टाइगर नहीं होता। सो ये पैटर्न हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तभी हम लिख सकते, तभी हम आंसर कर पाएंगे बोनोबो कहाँ मिलता है, जब हमें पता होगा कि किस टाइप के जानवर कहाँ मिलते हैं, कैमेलिड्स कितने टाइप के हैं, और वो कैमल्स में भी डिफरेंशिएशन है। न्यू वर्ल्ड के कैमेलिड्स अलग हैं और ओल्ड वर्ल्ड के अलग हैं, तो जो यहाँ कैमल्स मिलते हैं वो न्यू वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे, तो आप उनसे आप करके आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। Wow, so maybe that environment this is going to help you. Amazing. Coming to your optional, like how Yes, did sir. you decide, because you switched between your optional, you started with civil engineering, and I have to say that you are a much better civil engineer than me, because I never even thought of like civil engineering should be selected as an optional. But how did you decide that, and when you changed maths, like what was the approach? So those who have selected maths as an optional particularly, what suggestions would you give to them?
सर इन दिस केस आई वुड से कि एक तो हमने जैसे बोला कि सिविल इंजीनियरिंग, तो मेरा भी यही था, मुझे लगता था मुझे सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से आती है, बट देन आई रियलाइज कि पेपर में मार्क्स नहीं आए हैं। सो जब मेरा मेंस में नहीं हुआ 2023 में जो रिजल्ट आया था, मेरे एक दोस्त का हो गया था, एंड उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था उसके साथ कि यार His क्या option करूं। was maths. या हिज ऑप्शन वाज His मैथ option एंड ही was maths. स्कोर्ड लाइक 330 आई गेस, Okay. 332। Hmm. एंड देन आई रियलाइज कि यार क्या करूं। तो मैंने फिर उससे बोला, उसी दिन मैंने डिसाइड किया, मैं टॉपिक वाइज गया। सो आई वुड से सेम थिंग, अगर आप मैथ्स ले रहे हो, गो टॉपिक वाइज, आप देखो कि आपका कितना सिलेबस कभी तो पढ़ा है। तो मैंने जैसे ओडीई है, तो इंजीनियरिंग में अपने फर्स्ट ईयर में कोर्सेज होते हैं, कुछ वहाँ से ओवरलैप हो गया, कुछ जेई से ओवरलैप हो गया, और बेस्ट यही होगा आई गेस किसी डिस्कस करना जो मैथ्स ऑप्शनल कर चुका है या कर रहा है, और उसके साथ आप टॉपिक बाय टॉपिक वाइज जाओगे तो आप यू विल फील कुछ कुछ, क्योंकि टर्म्स होती हैं जो हमने कभी सुनी नहीं होती है, बट वो आपको एक कंफर्ट जोन बताएगा। अच्छा यार ये टर्म है, जैसे गॉस जॉर्डन है, नहीं आता, अरे यार ये तो सुना नहीं हो मैंने, बट वो बताएगा ये तो बहुत ईजी है क्योंकि उसने कर लिया है, और उसके आपका अगर लेवल सेम है तो आपको भी लगेगा तो मैं कर लूँगा। तो मैं टॉपिक वाइज गया था उसके सिलेबस के, एंड देन कुछ जेई से हो गया, कुछ ओवरलैप इससे हो गया, सिविल इंजीनियरिंग से हो गया, जो मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, स्टैटिक्स वाला पार्ट था, कुछ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से हो गया। तो ऐसे करके फिर मेरे दोस्त ने ही बोला कि यार एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो मैंने फिर दिसंबर में ओडी स्टार्ट किया, एंड आई वुड से यस से कि इजी टॉपिक से स्टार्ट करो, डायरेक्ट मॉडर्न अलजेब्रा पे मत स्टार्ट कर देना। कैलकुलस सबको आता है, सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशियल हाँ, इक्वेशन। कैलकुलस से कर लो जो बिल्कुल इजी है, आता है, 12th में भी किया हो इंटीग्रेशन, उससे स्टार्ट कर लो जो इजी आपको समझता हो, और वहाँ से फिर धीरे धीरे पिकअप करना चाहिए। और आई वुड सजेस्ट कि चाहे वो प्री की प्रिपरेशन हो, जीएस की प्रिपरेशन हो, या फिर मैथ्स की प्रिपरेशन हो, अपनी प्रिपरेशन को वो 3 फ्रेमवर्क में डालना बहुत जरूरी है, 3 स्टेज फ्रेमवर्क में। स्टेज 1 अपने आप को कस्टमाइज करो, अडेप्ट करो चीज़ों से, कि उस वो तब होगा जब आप जस्ट रीड करोगे, ओके पॉलिटी में ये चीज़ें आती है। स्टेज 1 तो यही है, तो मैंने स्टेज 1 यही करी थी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में बस प्रॉब्लम्स करता गया, जो टफ लगी छोड़ दी, बाद में देख लूंगा, अभी नहीं आ रहा मेरे को, अभी नहीं हो रहा है तो नहीं है समझ आ रहा, तो मैं आगे बढ़ गया उससे, प्रूफ है टफ से छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। बस ये माइंड में रख लिया, अच्छा ये इस चीज़ का प्रूफ था, फिर मैं देखूंगा पीवाईक्यूज में आया है तो लर्न कर लूंगा, नहीं आया तो नहीं छोड़ूंगा। स्टेज 2 होनी चाहिए हमारी, जहाँ पे हम कंसोलिडेट करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हमें पीवाईक्यूज देख लेने चाहिए उस वक्त, पीवाईक्यूज करने चाहिए और टेस्ट करने चाहिए उस वक्त। और प्री में तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज करें, बट मैथ्स में यू शुड डू। फर्स्ट रीडिंग हो गई, टेस्ट कर लो कितना आता है, क्या आप 200 अबव पहुंच रहे हो, ओके मैं पहुंच रहा हूँ, अगर पहुंच रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, क्या आप 150-60 में तो नहीं फंस गए हो, तो फिर आपको जरूरत है किन टॉपिक्स में जरूरत है वो एनालाइज करना जरूरी है। जैसे आपने स्टार्टिंग बोला था ना कि आपको सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, सो आई वुड से दिस थिंग ओनली कि मिस्टेक हो गई उसको बहुत वो मत ले लो कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अपने सेल्फ डाउट मत करो, वो हो जाएगा जब आप उसको एनालाइज करोगे। मैंने लाइफ में बहुत गलतियां करी है, ऑप्शनल चूज करने में गलती करी है, बट अगर मैं भी उसके लिए ऑप्शनल उस दिन नहीं चेंज करता अपने दोस्त के साथ, और 10 बार सोचता रहता यार ये ऑप्शन ले लूँ, सोशोलॉजी ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, मैंने बस एक कॉल ले लिया यार यही करूँगा और उसको सही बनाऊँगा, तो इसलिए वो सिलेक्शन हो भी पाया है, क्योंकि मैं हर पॉइंट पे अपनी मिस्टेक्स से चेंज करके एनालाइज करता आया हूँ। तो वो डरना नहीं चाहिए, अगर आपको लग रहा है ना आज के डेट में ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर आपको फील आ, क्योंकि अगर आपको फील आ गई है ना तो वो नहीं हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शनल में अगर इशू आ रहा है तो उस वक्त मतलब ऐसा नहीं एकदम से चेंज ले लो, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए मेरी मिस्टेक्स कहाँ आ रही है, अच्छा इन टॉपिक्स में है, लेट्स डू देम अगेन, ये टॉपिक मिसिंग है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, उनको वैल्यू ऐड करता हूँ। सो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी स्टेज 2 के अंदर, पीवाईक्यूज टेस्ट, और देख के अब देखना कि भाई अच्छा ओडी के भी इन सब टॉपिक्स में नहीं है, कुछ टॉपिक्स में ही है, जैसे लाप्लास में हो गया तो वहाँ पे कुछ कुछ हो सकता है कि उसमें इश्यूज हो, या फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है उनकी ट्रिक्स मेरे को याद रखनी है, या फिर कैलकुलस के अंदर सीक्वेंसेज एंड सीरीज वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर मेरे को इशू है, तो मैं स्पेसिफिकली उन्हीं के यूट्यूब पे फिर जाके वीडियोस देखा हूँ। फिर अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए उस प्रिपरेशन के टाइम पे, अब आपको रिसर्च करना है उन टॉपिक्स पे जहां आप नहीं आते, जहां आपको नहीं आता है, चाहे वो प्री में हो सकता है, प्री में हो सकता है कि इकोनॉमी में कुछ टर्म्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं आता, नहीं आ रहा है यार, ये मैंने इतना तो पढ़ लिया फिर भी कोई तो नया क्वेश्चन आ रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ रहा है, या फिर स्टरलाइजेशन आ रहा है, या फिर वो कोलेटरल डेप्ट उसका आ रहा है बॉन्ड्स वाला, तो यार कुछ तो टर्म्स मिस हो रही है,
तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं गया आरबीआई की वेबसाइट पे कि भाई जहाँ से आरबीआई ने तो डाल ही रखा होगा ना सब कुछ, अगर यूपीएससी कल को पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। तो फिर मैं आरबीआई की वेबसाइट पे सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स और मनी मार्केट्स को ही वहाँ से एनालाइज किया, ट्रेजरी बिल्स को भी वहीं से देखा। मैं फिर किसी बुक पे नहीं गया, क्योंकि बुक में हो सकता है किसी ने नॉलेज कम कर दी हो, मिस कर दी हो, छोटी कर दी हो। मैं डायरेक्ट आरबीआई की वेबसाइट पे गया, क्योंकि मुझे पता था ये स्पेसिफिक टॉपिक है, बहुत आता है, और यही स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेरी भी कम है। तो मैं उसके लिए फिर वहाँ पे गया, फिर मुझे समझ आया ट्रेजरी बिल्स क्या है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या है। अब मेरा फोकस बढ़ता चला गया स्पेसिफिक टॉपिक पे। अब यही टॉपिक फिर तुम किसी बुक में पढ़ोगे, अब आपका टॉपिक फिक्स हो जाएगा, अच्छा पीवाईक्यूज में यही आता है, तो मैं 10 बार इसी को ही टॉपिक को अलग अलग जगह पे भी फोकस इन्हीं पे रहेगा। तो दैट इज द थिंग, वही सेम मैथ्स में है। जब आप एनालाइज कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम्स आपको एनालाइज करनी चाहिए, आपको देखना है किस टॉपिक में वीक हूँ, उसी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपको आता है और उसको तो स्ट्रॉन्ग, उसको तो रिवाइज करना है। स्ट्रॉन्ग आपको वो करना है जो नहीं आता है। एंड जब आपने ये कर लिया है, फिर आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हर क्वेश्चन की ट्रिक्स बना लो। पीवाईक्यूज की मैंने ट्रिक्स बनाई थी, हर क्वेश्चन की, क्वेश्चन को कट कर लिया था जो नहीं आता। मैं उनको रेट करता था इजी, मीडियम, हार्ड। इजी है तो ठीक है, मीडियम है तो मतलब मीडियम मतलब कि पहली बारी में नहीं हुआ, दूसरी बारी में हो गया, हार्ड है कि मतलब आता ही नहीं है। फिर अगर उसके बाद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो लिख दिया साइड में कैलकुलेट मिस्टेक, दोबारा करना है पीवाईक्यू। फिर जो इजी वाली प्रॉब्लम्स है फिर मैं उनको स्किप करता था, क्योंकि मेरे को आती है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो मैं इनको कर लूंगा। मैं उनको रिवाइज करता था, मीडियम वालों को, हार्ड वालों को, उनकी ट्रिक्स लिख ली थी एक जगह। कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल को। अगर कंसोलिडेट नहीं होगा ना तो एंड में ऐसा हो जाएगा कि इधर ही मटेरियल पड़ा है, उधर ही पड़ा है, और पढ़ नहीं पाएंगे, रिवाइज नहीं हो पाएगा। सो वही 3 स्टेज फ्रेमवर्क माइंड में डाल लेना चाहिए। और ये जब भी आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन को, इस फ्रेमवर्क से ही स्टार्ट करो, आप इससे हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे। और दूसरा है, जब एग्ज़ाम पास आ जाए, 2 महीने का बचे, 3 महीने का बचे, उससे पहले एक जगह लिख लो कि यार ये मेरे को पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, फिर उसको चेक करते चले जाओ। जैसे प्री का है तो मैंने इकोनॉमिक्स के पहले सोर्सेज लिख लिए थे कि मैं इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ूंगा, बजट पढ़ूंगा, टाइम मिला तो ईयर एंड मिनिस्ट्री के रिव्यू पढ़ूंगा, स्कीम्स पढ़ूंगा, और आरबीआई की वेबसाइट्स देखूंगा, यूएन की वेबसाइट्स देखूंगा, और क्या कहते हैं PT65 करूंगा। ये मैंने सोर्सेज लिख लिए थे एटलीस्ट कि इनके बाहर नहीं जाऊंगा। और फिर उनको रेट प्रायोरिटाइज कर लिया, जैसे सर आपने पहले बात की थी प्रायोरिटाइजेशन की, उनको प्रायोरिटाइज कर लिया था कि एनसीईआरटी पढ़नी है पहले, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़नी है, दूसरी वाली नहीं पढ़नी है। कि कल को मैं एनसीईआरटी अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरे माइंड में ये है कि मुझे फोमो ना हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोमो का भी होता है। बट जब आप सोर्सेज को एक बार सोच लेते हो कि मुझे मैक्रो ही पढ़नी है, माइक्रो की जरूरत, वो वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आती भी नहीं है। दूसरी इंडियन इकोनॉमी वाली भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं आती और पुराना कंटेंट है। और तो एनसीईआरटी का हो गया, फिक्स कर लिया। PT65 पढ़ना है, इकोनॉमी से ही पढ़ूंगा। फिर आप अलग कोई मैगजीन पे नहीं जाओगे, उसी पे ही रहोगे एक जगह। मुझे पता है मैंने ये डिसाइड करी है, कहीं और नहीं जाऊंगा। टेस्ट सीरीज में मैंने 2 कोचिंग की पकड़ी है, तो मैं यही वाली कोचिंग की करूंगा, दूसरी वाली करूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा कि कल को किसी दोस्त ने ही बोल दिया ये वाली कर ले। तो ये सब आप फिक्स कर लोगे तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा, अपने टाइम को नोट करना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी एक हैबिट थी सर, जो मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं अपने टाइम को नोट करता था। अब तो चलो YPT जैसी ऐप आ गई है जहाँ पे आप इजीली पता चल जाता है। तो पहले मैं ये अपने टाइम को नोट करता था। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं 12 बजे स्टार्ट कर लिया पढ़ाई करने के लिए, तो 12 से 1 मैंने पढ़ाई करी है, फिर ब्रेक। तो उसको ऐसे करके नोट करता था, तो एक रफ अंडरस्टैंडिंग आती थी कि यार अच्छा आज 8 घंटे हो गए हैं, और वो 8 घंटे मतलब प्रोडक्टिव आवर्स में होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन चलाने लग गए, उसको हमने काउंट कर लिया। अगर काउंट कर लिया तो माइनस खुद देता था। मैं नहीं सोचता था कि 1 घंटे कर लिया, अच्छा इसमें बीच में यूट्यूब देख लिया है तो -30 सीधा -15, वो मैं लिख लेता था उसमें ही। तो वो कहीं ना कहीं वो 8 घंटे में आता था। फिर वो ऐसा नहीं है कि मेरा तो रिकॉर्ड अभी मेरे को पता ही है, तो मेरा कितना आता था मुझे पता है। वो 6 घंटे का पता चलता था कि इतना एवरेज आ रहा है। ओके ऐसा छुट्टी हो गई तो इससे ये होता है फायदा, सबकॉन्शियसली पता है कि 2 दिन छुट्टी होगी, तीसरे दिन पढ़ना है। और उससे भी पता रहता है कि आपने इतने दिन मैथ्स पढ़ा है, इतने टाइम ये पढ़ा है। एंड तो ये आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। और ये सब इससे क्या होता है, आप गेमिफाइड हो जाते हो थोड़ा। आपने जो भी बताया ना, ये जो स्ट्रेटजी है, देयर इज लाइक वेरी नाइस वे, दिस टेक्निक इज कॉल्ड पोमोडोरो। अच्छा, आपका जो तो मतलब यू आर एसेंशियली डूइंग पोमोडोरो। ओके। सो पोमोडोरो टेक्निक में हम क्या करते हैं, दैट यू फॉर एग्जांपल स्टडी, आप बहुत सारे ऐप्स हैं, देयर इज एन ऐप कॉल्ड फोकस टू डू ऐप, जिसको मैं भी यूज करता हूं उसको। तो इट इज लाइक वो 25 मिनट के लिए आपके फोन को साइलेंट करेगा बिल्कुल, लाइक देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस,
एंड देन इट विल रिवार्ड यू फॉर 5 minutes ऑफ ब्रेक. अब आपको यूट्यूब देखना हो, हाँ नोटिफिकेशन देखना हो, यस यस एंड यू डू दैट लेट्स से कंटिन्यूअसली 4-5 times, और आप वो हमेशा सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ लेट्स से हाफ एन आवर. तो आप वही एग्जैक्टली वही कर हाँ रहे थे यस यस कि यस अब एक मुझे एक बनाना है, यस ग्राफ देखना है अपना कि डेली कैसे Yes, चल yes, रहा है, yes. एंड मुझे इंक्रीमेंटली उसमें थोड़ा सा इंप्रूव ही करते रहना है, मतलब Yes, कम तो yes. नहीं होने देना है. हाँ हाँ कंसिस्टेंसी यू हैव टू कंटिन्यू. यस आई नो टफ है, बट इसमें ये होता है कि सबकॉन्शियसली माइंड को पता होता है कि अब एक हफ्ता हो गया है, अब तो पढ़ना ही है नेक्स्ट डे, तो अब एक दिन का ब्रेक लेते एकदम से लग जाते हो फिर 2 दिन में. सेकंड मेरे को इससे एक और चीज़ याद आ रही थी कि जैसे अभी भूल गया मैं आपसे बात अच्छा हो रही सॉरी, थी, मैंने हाँ, आपको मुझे लग रहा है बीच कोई में नहीं कोई नहीं कोई नहीं. नहीं. नहीं आप सोचना. एंड हाँ. आई आल्सो थिंक दैट दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट हैबिट फॉर्मेशन, यस कि यस आप सबकॉन्शियसली, जैसे होता है ना कि सुबह में उठ के ब्रश करना है, दैट इज पार्ट ऑफ योर हम्म. हैबिट. तो जो पढ़ना है दैट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द हैबिट. जैसे अभी आपका हैबिट है कि मोबाइल देखना है, यस एंड दैट सबकॉन्शियसली आ रहा है, तो उसी तरीके से सबकॉन्शियसली पढ़ने आना चाहिए, दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर हैबिट. यस यस एंड वो वही है कि जो आपने बताया कि जब आप देखते रहोगे, अपना ट्रैक करते रहोगे, एंड वो अपने आप आ ही जाएगा, एक हैबिट का पार्ट बन जाएगा. ठीक है, दैट्स सो हाँ मेरे को याद आ गया वैसे. हाँ सो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप लंच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त भी देख लेता था, अगर प्रीलिम्स के लिए खासकर जो कोई वैल्यू एडिशन कोई भी न्यूज़ है, या फिर फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोस्ट पे उसकी देख ली, या फिर कोई वैसा कंटेंट है, जैसे एपिक इंडिया का एक बहुत अच्छा सीरीज है हिस्ट्री के लिए. हाँ, हिस्ट्री के लिए एपिक इंडिया है ना, हाँ. बहुत अमेजिंग है. यस, तो वो मैं सीरीज देख लेता था. तो उससे क्या होता है, किंग्स वगैरह मेरे को याद हो गए थे, डायनेस्टीज का वो याद हो गया था. तो अपने जो लेजर टाइम भी है उसको कोई इंटरेस्टिंग, ये नहीं कि लेक्चर देखने बैठ गए, वो नहीं, यूट्यूब का या कोई किसी का लेक्चर देखने नहीं, कोई ऐसा कंटेंट जो मतलब देखने में इंटरेस्टिंग लगे, एंटरटेनमेंट भी हो और आप ग्रास्प कर पाए. जैसे नेटफ्लिक्स पे मैंने वो देख लिया वाइल्ड लाइफ वाला बीच में, तो वो आप कर सकते हैं. इससे आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो थोड़ी वो होएगी, मतलब इजी फील होएगी, मोटिवेटेड रहोगे, और गेमिफाइड थोड़ी फील होएगी. मतलब चीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप एनालाइज करते रहोगे ना मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको खुद मजा आएगा प्रिपरेशन में. बर्डन नहीं लगना चाहिए. हाँ बर्डन नहीं लगेगा. हाँ सो इसमें यही है, क्योंकि मैं खुद काफ़ी सारे चैलेंजेस से ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डील किया हूँ, बट यही था कि वो सब चीज़ों ने ना अफेक्ट किया, मेरे को पर्सनली अफेक्ट किया, स्ट्रेस जो था, डिस्ट्रेस जो भी था, बट जो प्रिपरेशन थी वो उतनी अफेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि मैं एट द एंड किसी ना किसी तरीके से मैं उस पर शिफ्ट हो जाता था. अच्छा. हाँ क्योंकि वो प्रोसेस प्रोसेस ही ऐसा हो गया था कि सोचना है, कहीं चैट जीपीटी करना है, अच्छा ये टॉपिक है तो चलो इन्वेस्टोपीडिया पे चले गए, तो वो ऐसा प्रोसेस हो गया था. आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क दैट बिकॉज प्रिपरेशन टाइम में बहुत बार ओवरवेलमिंग आप फील करते हो, यू बिकम ओवरवेलम्ड लाइक सो मच ऑफ थिंग्स, हाउ डू यू रिवाइज दैट, एंड कुछ डोज होंगे जहाँ पे यू विल फील लो, right? And despite those low days, you have to like push yourself, and you have to work for it. Like some of the tips you can give to candidates that how can we be better at those things. Yes. So पहले मैं अपना बता देता हूँ. So मैं तो घर से ही पढ़ा हूँ, so उसमें सोशली आइसोलेटेड था, बाकी फैमिली के अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं तो उनसे बंदा और डिस्ट्रेस हो जाता है. फिर फाइनेंशियली मैं जॉब छोड़ के आया था, और वन ऑफ द रीज़न ये भी था इसलिए मैं ऑरेंज शिफ्ट नहीं हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियली मैं सपोर्ट नहीं कर सकता था यहाँ पे जितने एक्सपेंडिचर है, तो उससे बंदा और डिस्ट्रेस हो जाता है कि यार अब जॉब भी छोड़ दी है, अब सिलेक्शन पता नहीं होगा नहीं होगा, और फिर वो माइंड में भी रहता है कि यार कुछ तो काम करो. तो मैं साइड बाय साइड, एक मेरा साइड हसल था, बिजनेस था थोड़ा सा, तो उसको करता था थोड़ा कि आए थोड़ा सपोर्ट के लिए. एंड उससे क्या होता है कि अब आप काम भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस हो जाते हो. और दूसरा कोई सोशली आइसोलेटेड हो. अब ओआरएन में तो ये है कि मैं भी 2 महीने यहाँ पे रहा, तो फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप बैडमिंटन चले गए, ये कर लिए. तो यहाँ पे इनके तो इश्यूज अलग हैं थोड़े, ओआरएन में तो घर के इश्यूज अलग हैं. घर पे ये होता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, और यहाँ पे एक्सेस का है, वहाँ पे वो वाला इशू है, यहाँ पे टू मच ऑफ है. हाँ वहाँ पे तो डेफिशिएंसी का इशू है. तो मैं पहले डेफिशिएंसी वाली बात कर देता हूँ, क्योंकि वो वाला एक्सपीरियंस मेरा पहले ज़्यादा है, और हमें लेकर तो वो गोल्डन मीन लेकर आना ना एथिक्स वाला बीच में. हाँ अरिस्टोटल का. यस. तो अब उसमें क्या होता है कि अब सोशली आइसोलेटेड हो तो क्या ही कर सकते हो. तो अब तो ये टेक्निक्स है कि आप मेडिटेशन कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, बट आई नो वो हो नहीं पाती है, आप नहीं कर सकते रेगुलर. तो इसमें सबसे मैंने जो आपको बताया है ना कि आप प्रोसेस को ही अच्छा कर लो, मतलब आप ऐसा बना लो कि आप क्यूरियस हो, नॉलेज को चाहते हो, कुछ साइड में रख लो एक हॉबी. कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, मेरी तो कोई हॉबी नहीं थी वैसे, मैं तो मूवीज़ या वही देख लेता था, और
गेमिंग का भी, स्पोर्ट्स भी ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, चाहिए ज़्यादा बंदे चाहिए उसमें, कोई आएगा भी नहीं। इसमें दूसरा, अगर आपके पास हॉबी है तो आप वो परस्यू करिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन में बहुत सारे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, अभी जुड़ा था बेसिकली ओआरएन में आने के बावजूद। और कल भी मैं, इसलिए मेरा शेड्यूल नहीं हो पाया टॉपर टॉक, बिकॉज मैं गुरुजी से मिलने गया था, उनसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया था अर्जेंटली। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं हो रहा तो जस्ट काम कर लीजिए, अपने आप को कुछ मत कीजिए, जस्ट ठीक है यार, एक आध दिन चिल मारना चाहता हूँ, चिल मार लेता हूँ, इतना नहीं सोचना है। हाँ, वो फिर आपको पता कैसे चलेगा, जब आप वो टाइम नोट कर रहे होगे ना 7 दिन, तो आपको पता है कि 8वें दिन छुट्टी है। हाँ, या गलती से बीच में छुट्टी हो गई तो 2 दिन बाद मुझे पढ़ना है, तो ये भी है। तो वो मेरे, वो आता है ना डायरी में, सबसे पहले कैलेंडर होता है ना सर, वो हाँ बने होते हैं बॉक्सेस, हाँ तो मैं उसी में आर्स लिखता था और कट 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 करके जहाँ पे नहीं हो रहा कट, तो वो ऐसे छोड़ देता था। ओके। तो ऐसा है, या घूमने चले जाओ तो है ही, बट आपको कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो वो क्या है ना, आप स्ट्रेस हो जाओगे तो फिर यार फिर वो मेडिसिन में चला जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, मेडिटेशन हो जाती है, फिर थेरेपी लेनी पड़ जाएगी। और इसलिए नाउ कमिंग टू वो एक्सेस वाला, तो एक्सेस में तो यही है कि मैं 2 महीने यहाँ पे रहा हूँ, मेंस के बाद तो मैं भी फ्री हो गया था, तो यहाँ पे तो मैं काफ़ी इंटरेक्ट किया, इनफैक्ट मैं इसी साल काफ़ी इंटरेक्ट किया उन लोगों से, और क्योंकि पिछले 3 साल से तो मैं घर पे ही था। और अब यहाँ पे यही होता है कि आपकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, सिंधी पार्क है, एक दो पार्क है जहाँ पे बैडमिंटन खेल सकते हो, रात को चलता है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा बैलेंस कीजिए, मतलब शाम को निकलना है तो 1 घंटा, और जिम का भी मतलब टाइम फिक्स कर लिया 1 घंटा, और ये सब चीज़ें तभी हो पाएगी जब वो वही सेम चीज़, जब आप टाइम नोट डाउन कर रहे होगे। ऑलरेडी प्रोसेस का पार्ट है। यस, जब टाइम नोट डाउन कर रहे होगे ना, तो मैं जिम जाता था सर, तो मैं क्या करता था, मुझे पता है कि यार 1 घंटा देना है, तो मैं वहाँ जाता था, और एक घंटा शेड्यूल्ड है, तो जिम 1 ही घंटा करके आता था, किसी से बातचीत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे 1 ही घंटा देना है, और वो मेरी उसमें नोट डाउन हो रहा है। अब किसी दिन 2 घंटे हो गए तो फिर दिख रहा है कि भाई 2 घंटे चला गया हूँ, और 2 घंटे जिम भी नहीं किया है, वहाँ बातें कर रहा था बैठ के, तो वो रिकॉर्ड भी हो गया है अपना खुद से ही। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप ऑनेस्ट हो गए ना, किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, तो दिख जाएगा यार ये तो, यार ब्रेक, मैं ऐसा तो नहीं है, मैं नहीं करता था, मैं भी 1 1 घंटे या आधे आधे घंटे बात कर लिया हूँ दोस्तों से, बट अगर मैं 2 बजे बैठा हूँ पढ़ने के लिए बैठा, किसी को कॉल आ गया आधे घंटे, फिर वो 2 से 2:30 वो ब्रेक में लिखा हुआ है, और मुझे पता है कि ये चला गया है टाइम। अब आज मेरे 6 घंटे हो गए हैं, मैंने सोचे 8 घंटे थे, वो 6 घंटे हो गए, तो कल मुझे फिर 10 घंटे या कुछ निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे है, तो ओवरऑल सोच के करोगे ना, तो उससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। और दूसरा ये भी है कि अब ये मैंने आपको फ्रेमवर्क बता तो दिया है, अब ये नहीं है इसको रिजिडली फोकस कर लें कि भाई मतलब आने ही है 72 घंटे, ऐसा नहीं है। उस पर आ गए 55, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपकी जो एनालिसिस है वो वैल्यू एडिशन में फोकस होनी चाहिए, आपकी सेटिस्फेक्शन। अगर GS3 में वो कमेटीज आज मुझे करनी थी, समरीज, तो मुझे करनी ही है वो, मुझे वो सोचना है कि मेरे आंसर में हर टॉपिक के बीच में एक कमेटी होनी चाहिए, अगर वो मिसिंग है तो मैं पेपर नहीं दे सकता, तो पहले वो कर लो। तो हर प्रिपरेशन के टाइम पे प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे आज वैल्यू एडिशन करना है, तो किस चीज़ का करना है, वैल्यू एडिशन 1000 चीज़ों का है, तो क्या उसमें भी प्रायोरिटाइजेशन है कि मेरे पास कमेटीज होनी चाहिए। तो मैं बैठ के सोचूंगा कि ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो मेरे पे क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो जब वही है सर, एक्चुअली प्रोसेस मेरे ख्याल से मेरा तो स्ट्रेटजी सेम ही है, कि ये वो आप सोचते रहो कि मैं इसको इंप्रूव कैसे करूंगा। ज़्यादा रटने पे मत फोकस करो, ज़्यादा मतलब मैं तो ऐसा बंदा था कि यार मेरे से रटा नहीं जाता है। वन ऑफ द रीज़न ये भी था सर कि मैं ये इस प्रिपरेशन में डिले किया हूँ UPSC में, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे लगता था कि यार आर्ट्स वाले ये जो सोशल साइंसेज वाले कोर्सेज हैं उसमें बहुत लिखना होता है, और मेरे से ना लिखा जाता है इतना ज़्यादा, और जब कॉलेज में भी था तो मार्क्स नहीं आते थे, जिनमें भी लिखना होता था पेपर में, सिविल वालों में उन्हें मार्क्स नहीं आते थे। तो मुझे लगा कि यार पहले इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे जॉब हो जाएगी, फिर वहाँ से CSE करूँगा। फिर जब मैं ये प्रिपरेशन में आया और मैंने अनुदीप दुरीशेट्टी सर की बुक देखी और उनके फ्रेमवर्क्स देखे, और ये फाउंडेशन में करके जो राजेश सर का वो देखा कि डायमेंशन कैसे निकालने हैं, ये दिखाना है, तो मुझे समझ आया। फिर मैं अपने भी पिक एंड चूज करने लगा, और भी सोर्सेज थे जहाँ से मैं रेफर किया, तो मुझे समझ आया यार ये ज़्यादा गेम ना ब्रेन का है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई डायमेंशंस और उनको रिकॉल कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पेस्टल कैसे लगा रहे हो, कैसे फिर क्या कंक्लूजन में वे फॉर्म में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे सोच रहे हो, या फिर
ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे आर्टिकल्स मेरे पास याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं यूज़ करना इंट्रो में। रैदर देन मैं लक्ष्मीकांत रिवाइज करूंगा या लर्न करूंगा, क्योंकि मैंने समरी पढ़ी है एक उसकी कोचिंग की, स्टार्टिंग में 2023 का अटेम्प्ट में समरी के बेसिस पे किया था, फिर लक्ष्मीकांत को रेफरेंसेस के लिए यूज़ करने लग गया, उसको मैंने कभी लर्न नहीं किया है, क्योंकि आप रिकॉल कैसे करोगे इतनी बड़ी बुक को अगर मैं लर्न करने जाऊंगा। अगर मुझे अब इश्यूज को मुझे कॉमनलाइज करना पड़ेगा ना, कुछ तो पैटर्न्स देखने पड़ेंगे कि भाई सरकारी इंस्टीट्यूशन है तो अकाउंटेबिलिटी का इशू होगा, तो एक तो स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया, हर जगह पेल देंगे उसको, कर देंगे रद्द कर देंगे। फिर एक टेक्नोलॉजी का आजकल चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी ही चाहिए मेरे पॉइंट के अंदर, तो ये कॉमनलिटीज ऑफ पॉइंट है, इनको मैं अलग आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मेरे पॉइंट्स में क्लाइमेट चेंज आना चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे वो पॉलिसी है, कहीं भी है, गवर्नेंस है या ई गवर्नेंस है, या फिर एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, इवन सिक्योरिटी है, सब में क्लाइमेट चेंज के कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। एआई है, क्लाइमेट चेंज है, तो ये जब आप सोचोगे बैठ के ना, तो अपने आप प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग हो जाएगी और अपने को समझ भी आएगा, और आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ बेसिक, मैं इसलिए बोला था कि पहले फाउंडेशन कर लो जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि भाई इकॉनमी क्या है, भाई पॉलिटी क्या है, उनके इश्यूज पता है। नहीं तो फिर बाद में तो आप सारी टेम्पलेट्स ही हैं, वही आप सोचोगे जब आप, जैसे मैंने बाद में यही टेम्पलेट बना ली थी पॉलिटी की, कुछ भी क्वेश्चन होगा राइट से सोचूंगा एक बार, फेडरलिज्म से सोचूंगा कि कोई फेडरलिज्म इशू तो नहीं आ रहा है, फिर राइट्स में वुमेन रिस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है कोई इशू, या फिर आर्टिकल 21 का है या 19 का इशू है, ऐसे याद रख लिया था कि जो भी क्वेश्चन होगा। और फिर फेडरलिज्म हो गया, फेडरलिज्म में सेंटर का है, स्टेट का है, लोकल का है, उनका क्या रोल है। फिर उसमें नेक्स्ट आता है प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स का इस क्वेश्चन में कोई रोल आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ठीक है, उसका डाल दिया, सिविल सोसाइटी का डाल दिया। देन आईआर है, क्या ग्लोबल कोई मॉडल है जो मैं यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। तो ऐसे आप सिलेबस को ही फिर याद कर लोगे, और बस आपको बस कुछ सर्टेन जार्गन्स और कीवर्ड्स और एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, वही प्रिपेयर करने होंगे। आई गेस इसमें दिस फ्रेमवर्क मस्ट हैव हेल्प्ड यू लॉट इवन इन आंसर राइटिंग, जो Yes, sir. प्रीलिम से मेंस के बीच का Yes, जो पूरा yes. पीरियड है, लाइक हाउ मेनी आंसर्स डिड यू यूज टू राइट? मैंने ऑनेस्टली सर इतनी टेस्ट सीरीज नहीं लिखी है। जो अपनी फाउंडेशन के थे टेस्ट, उसमें भी मैं एंड में जो पहला किया था टेस्ट, वो भी मैंने आई थिंक 2023 में ही लिखे थे। उसमें भी आई गेस 8 टेस्ट तो मैं छोड़ दिया, क्योंकि आई थिंक 30 की होती है। फिर मैंने नई ले ली थी और उसमें भी कुछ 4 छोड़ दिया था, और 2023 का दे दिया था ऐसी अटैम्प्ट। तो मैं वो टेस्ट इतना ही लिखा हूँ, शायद वो मेरी एक कमी भी रही है कि अगर मैं टेस्ट ज़्यादा लिख लेता तो हो सकता है मेरा स्कोर वो 420 या 425 तक पहुंच सकता था। बट मैंने इस पे बहुत वर्क कर लिया था, जब मैं टॉपिक्स अपने ब्रेनस्टॉर्म करता था ना, तो मैंने अपने टॉपिक्स को इसी तरह ब्रेनस्टॉर्म किया था कि सिलेबस वाइज मैं कैसे सोचूंगा। अगर इलेक्शंस है तो इलेक्शंस के इकोसिस्टम को मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया था कि इलेक्शन के इकोसिस्टम में क्या क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सिविल सोसाइटी है, इंटरनेट है, सोशल, तो सबको ब्रेनस्टॉर्म किया हर बार। और देन उन सब में मैंने कंटेंट को देखा कि क्या मुझे फाउंडेशन में कुछ कंटेंट पढ़ाया है, अच्छा मिसिंग है तो मुझे ऐड करना है, क्या मेरे को कहाँ से ऐड करना है, अच्छा ठीक है, कोई विजन किसे कर लिया, अच्छा वहाँ भी मिसिंग लग रहा है, ठीक है गूगल पे किसी और से कर लिया, चैट जीपीटी कर लिया। फिर सबसे ये मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली थी। और इससे क्या होता था कि मैं अपना आप में जब टेस्ट सीरीज लिखता था तो उसमें आंसर राइटिंग हो जाती थी। बट आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट लिखने ही चाहिए, मेरी भी वो कमी रही है, क्योंकि उससे आप और अच्छे से दे सकते हो पेपर। बट ये है कि मिनिमम बिना आप टेस्ट मत लिखिए अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट, बिकॉज उससे क्या होगा, आप टेस्ट लिख ही नहीं पाओगे। फिर आप सोचोगे यार मैं टेस्ट को लर्न कर लेता हूँ। ये भी मैंने किया हुआ है, जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया था सर 2023 में, तो पॉलिटी का टेस्ट पहला लिखा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये विजन में सॉल्यूशंस तो ऐसे दे रखे हैं, और सारे क्वेश्चंस को फिर मैं नोट्स बनाने लग गया, क्रैम करने लग गया। और उसके बाद ये हुआ कि प्री आ गया, तो अब उसके बाद 2 महीने बचे हैं, अब मैं सारी टेस्ट भी नहीं क्रैम कर सकता हूँ, अब क्या करूँ। तो तब मैंने फिर ये अप्रोच कहीं से सीखी थी मैंने, और उसके बाद फिर मैंने अप्रोच फोकस करी कि ऐसे मैं ब्रेनस्टॉर्म कर लेता हूँ, और उसी से मेरे जीएस, चारों जीएस में पहले अटेम्प्ट में मेरे डिसेंट अच्छे मार्क्स आ गए थे, मतलब नियर इट वाज 393 अराउंड थे। Okay. और वो 2 महीने का ही प्रेप था, इतना ज़्यादा प्रेप नहीं था। उसमें यही फोकस किया था सिर्फ। एसे और एथिक्स के अलग से कुछ किया था क्या? बिकॉज द रीजन आई एम आस्किंग अबाउट एसे एंड एथिक्स इज बिकॉज ये ट्रेडिशनली पेपर 1, 2, 3 से अलग है। जैसे ऐसे तो चलो फिर भी एक ओवरऑल बहुत सारा नॉलेज चाहिए, तब जाके आप एक बढ़िया ऐसे लिख पाओगे। तो आई वांटेड टू नो कि एथिक्स में आप क्या सजेशन दोगे दैट पेपर 4 को कैसे अप्रोच करें, बिकॉज वो 250 मार्क्स है एंड बहुत उतना एफर्ट नहीं चाहिए जितना मान लो आपको पेपर 3 करने में एफर्ट जाएगा।
but still it is two same Yes. marks as paper 3, as paper 2, as paper Hmm. 1. So how can we improve there, and how can we improve in essay also? Sure. सो एथिक्स आई वुड से कि मेरे लिए वो ट्रिकी पार्ट रहा है, और इनफैक्ट मैं दोनों एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, दे 2023 वाला भी और 2025 वाला भी। सो पहले 2023 वाला बताता हूँ, जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, 118 आ गए थे उस वक्त। और मैं तब मैंने जो फाउंडेशन के नोट्स थे, जो मैंने एथिक्स प्रिपेयर किया था, वो मैंने तब उन्हीं आफ्टर प्री ही प्रिपेयर किया था। और फाउंडेशन मैंने एक बार बस रीड कर लिया था, बट जो उसका ओवरऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग था, कंसोलिडेशन था, और हर कीवर्ड के लिए एग्जांपल्स प्रिपेयर करे थे। अब मेरा जो फ्रेंड था उस वक्त सिलेक्टेड हो गया 2023 में, उसके साथ बैठ के भी एक बार जो एग्जांपल्स थे वो तब प्रिपेयर कर लिए थे। फिर मैंने क्या किया था, थ्योरीज और एग्जांपल्स को बस रिवाइज किया, और उनको बस फिट करने की अंडरस्टैंडिंग समझी कि कैसे हम किस थ्योरी को कैसे लगा सकते हैं। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वहाँ पे हम बहुत सारे थिंकर्स लगा सकते हैं, डैनियल गोलमैन तो है ही। फिर कैटेगराइज किया कि इंडियन थिंकर है, ओके, भगवत गीता से लगा सकते हैं, निष्काम कर्म, वो स्थित प्रज्ञ वाला। और सब पे मैंने ना एग्जांपल्स बना देते कि अगर फैमिली पे क्वेश्चन होगा, फादर का रोल आएगा तो उस पर क्या है होगा, मदर पे क्या होगा, उस पर क्या होगा। एग्जाम्पल्स को मैंने इतना डिटेल कर लिया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच लिए थे। अगर पावर है तो पॉजिटिव क्या है, पावर इश्यूज नेगेटिव क्या है उसके। देन पेरेंटिंग है तो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, पेरेंटिंग के नेगेटिव एग्जाम्पल्स। अकाउंटेबिलिटी पॉजिटिव कैसे हो रही है, और नेगेटिव अगर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी तो क्या इश्यूज होंगे। तो वो सब कीवर्ड्स पे जो सिलेबस में दे रखे हैं, उस बेसिस पे नोट्स बनाए थे। और along with examples, फॉर एथिक्स, हाँ, along with examples. यस, एंड में पहले तो मैंने तीनों के कंबाइन किए नोट्स को, जो मैम ने क्लासेस में बताए थे और जो सर की बुक थी उसको कंबाइन करके, और एथिकल डायलेमास उन सब के नोट्स बनाए। देन केस स्टडीज जो थी उनके जो भी डैश वर्सेस डैश वाले जो होता है कीवर्ड्स, उन पे फोकस किया। ये मैंने प्रिपरेशन 2 महीने में की, जो 2 मंथ का, जिसमें सारा करना था उसी टाइम करी थी। और उस वक्त मेरा स्कोर आ गया था 118 अराउंड, जिसमें है ना, एंड जिसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया था उस वक्त। And to give you some, 2023 में 118 वाज अ वेरी गुड मार्क्स, Yes. एंड इस साल भी आपके 114 है, जो कि इस साल भी अगेन बहुत बढ़िया हाँ, मार्क्स है, मतलब 111। हाँ, इस साल, 111, हाँ। ओके। सो इस साल 25 में मैं थोड़ा, जब मैंने, क्योंकि मैं जो 24 में जैसे बताया कि ऑप्शनल चेंज किया था, तो मैं 24 में पढ़ नहीं पाया था इतना जीएस और उसको, जीएस एथिक्स को। तो इस साल बस मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा कर ली थी कि मैं जो विजन आईएएस की वो 120 केस स्टडीज़ हैं, उनके मैं पढ़ के नोट्स बना लिया था, शॉर्ट नोट्स, कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा हर उसमें। तो एटलीस्ट मैं उस पर आई नो कि भाई ये मुझे पता है हर सिचुएशन का कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये मैंने किया था इस साल एडिशनल, और एग्जाम्पल्स को अपडेट कर लिया था करंट अफेयर्स से। एंड इस बार मैंने जो विजन का एक और आया था, बाद में आया था डॉक्यूमेंट, मेंस के प्री के बाद आया था एक डॉक्यूमेंट, जो वैल्यू एडिशन वाला एक डॉक्यूमेंट आया था बीच में, एथिक्स पार्ट ए पार्ट बी। तो उससे मैंने थ्योरीज और कुछ कुछ कीवर्ड्स, थिंकर्स, कोट्स, ये सब प्रिपेयर करना चालू किया था। आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड डॉक्यूमेंट, जहाँ पे पीवाईक्यूज भी अच्छे से दे रखे हैं कि उनमें डिलेमास क्या होंगे, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या फ्रेमवर्क लगाना है। दो मैं पूरा नहीं कर पाया था वो। और इस साल एथिक्स में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि, क्योंकि ये बहुत वाइड है और इसमें नेचुरल आता है कि यार इसको अच्छा कैसे किया जाए। मैं भी वही सोच रहा था कि यार 120-25 कैसे लेकर आऊँ, और उसमें शायद ओवर ही हो गया था। तो मुझे तो आई गेस, अगर मैं अपनी मिस्टेक्स से वो दूँ कुछ गाइडेंस, कुछ क्रक्स बताऊँ, तो यही होगा कि आप जो फाउंडेशन नोट्स हैं उनसे आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए थ्योरीज की। उसमें आपको सब कुछ नहीं लर्न नहीं करना है एथिक्स में। जैसे एटीट्यूड में बहुत सारी चीज़ बताते हैं कि उनका मतलब क्या है, ईगो डिफेंसिव, ये सब का यू शुड नो कि ये कीवर्ड यूज़ कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको एट द एंड कीवर्ड यूज़ करना है। सोक्रेटिस के बारे में बताते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए वो थिंकर को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो। सोक्रेटिस ने बोला है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, या फिर एरिस्टोटल ने बोला है कि गोल्डन मीन है। तो ये दीज आर कीवर्ड जहाँ पर कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। अब आपको एरिस्टोटल के बारे में पूरी कहानी याद नहीं रखनी है, या गोल्डन मीन होता क्या है बस पता चल गया, अच्छा 2 वाइसेस के बीच का एक मीन है, या वर्च्यू थ्योरी क्या होती है। तो मैंने क्या करा था, मैंने थिंकर्स को डिवाइड कर लिया, वर्च्यू थिंकर्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, इस 3 कैटेगराइजेशन कर सकते हो आप। वर्च्यू वाले आ जाएंगे, कुछ डियोंटोलॉजिकल आ जाएंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंशियल आ जाएंगे। एंड फिर आप जैसे वेस्टर्न थिंकर्स है, ऐसी पैरेलल में इंडियन थिंकर्स बना लीजिए। फिर कुछ मोटोज, आईएएस का मोटो, लवासना का मोटो, वो यूज़ कर सकते हैं। एंड
फिर उसके बाद कुछ और भी थिंकर्स हैं जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, कुछ तो वो हिस्टोरिक थिंकर्स हैं, जैसे सोक्रेटिस हो गया, प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया। कुछ मॉडर्न थिंकर्स भी हैं, जैसे गांधी जी हो गए या फिर दीनदयाल उपाध्याय जी हो गए, उनकी फिलॉसफी। तो उनको आप एज अ कीवर्ड्स, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आप याद रखिए, और एडमिनिस्ट्रेटर्स के एग्जांपल्स याद रखिए, फिर लीडर्स के एग्जांपल्स याद रखिए। तो जहाँ पे मुझे थ्योरी को अपनी जो मेरा कंटेंट है कि कोई एथिकल डायलेमा है रिलेटेड टू सपोज इमोशनल इंटेलिजेंस ही है या एथिक्स में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे कंटेंट तो मैं खुद ही लिखूंगा कि अवेयरनेस चाहिए, बट सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, क्यों चाहिए, उसका एग्जाम्पल फिर मैं लिख दूंगा। किसी भी ब्यूरोक्रेट का लिख सकता हूँ या स्पोर्ट्स में धोनी का लिख सकता हूँ। देन उसको जब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं फिर यूज़ करूंगा भगवत गीता को, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, वाइज मैन उसको कहते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन मान लो अब दो जगह होता कि इमोशनल इंटेलिजेंस दो बार आ गया सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो नेक्स्ट में फिर मैं डैनियल गवर्नमेंट को कोट यूज़ कर लूंगा, या फिर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस दोबारा आएंगे। देन अगेन मुझे अभी जो याद आ रहा है, सेकंड ARC बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मैं रिकमेंडेशंस बना लिए थे, उसको यूज़ करो जहाँ भी सिविल सर्वेंट्स का यूज़ करना है। तो ये सब जो कंटेंट है इसको आप वैल्यू एडिशन करके एथिक्स को ब्रॉडली समझना बहुत जरूरी है। ब्रॉडली जो सर ने या मैम ने या फिर किसी भी बुक में कंटेंट दे रखा है उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, उनके कीवर्ड्स याद रख लो, जिससे यू कैन जस्ट स्प्रिंकल देम अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी फील से। तभी, क्योंकि ऐसा तभी होता है कि कुछ लोग बहुत भारी कीवर्ड्स यूज कर लेते हैं बट मार्क्स फिर पता नहीं है। आते नहीं है, और बल्कि कुछ लोग बहुत ऐसे लगते हैं कि यार सिंपल लिखा है, सिंपल बढ़िया लिखा और नंबर मार्क्स आता आ है। गए हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो शायद वो इमोशन से लिखा हो, सच में लिख दिया हो। हम्म। तो वो चीज़ हो सकती है जो आपका अंदर ने आपने, अब मुझे कोई बुक की जरूरत थोड़ी ना है, तो कॉन्शियस ये है कि भाई हमें कंपैशनेट होना चाहिए, है ना। बट मैं अब मुझे कंपैशन के बारे में पता है कि कंपैशन से होगा क्या, कि कंपैशन होगा तो सामने वाला भी प्रॉब्लम को सामने वाले की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है, उसका मोटिवेट हो सकता है, वो उसकी एंग्जाइटी कम होगी, एंगर कम होगा, पीस आएगी लाइफ में, और जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए भी एक सेल्फ मोटिवेशन होगा। बट ये मैंने कंटेंट लिख तो दिया, बट अब मुझे एग्जाम्पल्स चाहिए इनके लिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में लीडर्स का भी दे सकता हूँ, मैं कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी का भी दे सकता हूँ, बट ये सिविल सर्वेंट सर्विस एग्जाम है तो मैं ब्यूरोक्रेट्स का दूंगा, तो उनका ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ के जॉब से अगर हो तो जॉब के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, तो और पर्सनल टच देगा वो। देन तो कोशिश कीजिए पर्सनल टच देने की, कोशिश कीजिए ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल्स लिखने की, कोशिश कीजिए जो बड़े लीडर्स हैं, नॉन लीडर्स हैं उनकी, कोशिश कीजिए कुछ वेल नॉन सोशल वर्कर्स हैं या फिर कुछ इनोवेटिव एग्जाम्पल है वो लिखने की। तो एथिक्स के लिए यही है, और बाकी इनके सेपरेट थ्योरीज एक अलग चीज़ है जहाँ पे आपको उनके कीवर्ड्स याद होने चाहिए, थ्योरी का मतलब भी पता होना चाहिए। That's fantastic. Anyone else would like to ask about ethics or overall any question if you have? हाँ जी. Just let me repeat the question for those who are watching this. So what he's asking is that how did Tushar consolidate his entire foundation material and all the value addition he did by himself, and did he make short notes based on that, and was that enough, or and what क्या था उसके बाद, एक सारे ही हो गए या कुछ ऐसा भी का कि ओके अगर मान लो it was not enough, then if something new happens in exam, some new question happens in exam, then how did he tackle it? Yeah, that is the question, right? Okay, first of all thank you, and regarding your question I would say that जो मैंने consolidation किया था that was done after brainstorming, एंड मैंने इसके लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए। फर्स्ट मैं लैपटॉप से भी किया था, और स्पेशली आई थिंक जो सबसे टफ पार्ट होता है कंसोलिडेट करने का, दैट कम्स इन GS3, जो डायनामिक वो है। जो आपके स्टैटिक्स हैं वहाँ तो आप इजीली कर सकते हो, दैट वॉन्ट बी अपडेटेड, सो वो तो आप कभी भी कर सकते हो। तो GS3 के लिए मैंने क्या किया था, मैंने लैपटॉप पे ही स्टार्ट किया टॉपिक वाइज, एंड देन आई यूज टू थिंक द व्हाट एस्पेक्ट कि अगर इसमें जैसे सपोज टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ, so how will I start it? So I should have some intro. अब इंट्रो के भी बहुत सारे तरीके लिखने के, है ना। सो बिकॉज इंक्लूसिव ग्रोथ एक कंसेप्ट है, सो आई शुड हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन। सो वहाँ पे UNDP की मैं डेफिनेशन लिख ली। अब वो आपके फाउंडेशन नोट्स में हो सकती है, अगर आपके फाउंडेशन में नोट्स में नहीं है सो यू कैन जस्ट गूगल इट या कहीं भी कंटेंट से। तो मेरा अप्रोच यही है कि मेरे पास कंटेंट तो पड़ा है, अब मुझे कंसोलिडेट करना है अपने तरीके से, क्योंकि जो कंटेंट किसी ने लिखवाया होता है वी आर नॉट एबल टू रिकॉल इट।
वो हम नहीं रिकॉल कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी लर्न कर लो उसको। अब मेरे को पता है कि इंट्रो में यूएनडीपी से लिखूंगा, तो वो उसी वक्त भी फिट हो गया माइंड के अंदर, और आप जब यू विल रिवाइज इट देन इट विल गेट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज। नेक्स्ट इंक्लूसिव ग्रोथ है सपोज, सो नाउ व्हाट एस्पेक्ट, नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या आएगा, नेचुरल क्वेश्चन, ओके वाई वी नीड इंक्लूसिव ग्रोथ, सो देन आई शुड हैव सम डायमेंशंस कि मैं रिकॉल कैसे करूंगा। अब नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ, अब मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया इंक्लूसिव ग्रोथ, इसलिए भी वो इसलिए बता देता हूँ क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ ही ऐसा टॉपिक है जो हर जगह कनेक्टेड है, इसके आप नोट्स नहीं बना सकते हो, राइट, इसकी बस आपको डेफिनेशन ही पता होनी थी, है ना। अब मैंने बस इतना लिखा कि जब मैं नोट्स बनाऊंगा, ओ सॉरी, जब मैं सोचूंगा शॉर्ट नोट्स में के लिए वाई सोचूंगा, तो मैं डायमेंशंस क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक की भी डायमेंशंस हैं, सोशल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, या इकोनॉमिक इंक्लूजन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, कनेक्टिविटी क्या रोल प्ले करती है। अपने जो टेम्पलेट है GS3 का, उसमें सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है इंक्लूसिव ग्रोथ के बाद। एग्रीकल्चर, हाउ एग्रीकल्चर विल, मैं एग्रीकल्चर सोचूंगा कुछ पॉइंट्स, मैं मैन्युफैक्चरिंग से सोचूंगा कुछ पॉइंट्स, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सोचूंगा, तो बस इतना ही लिखूंगा वाई में कि वाई इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर सोचूंगा, मैन्युफैक्चरिंग सोचूंगा, इससे सोचूंगा। अब ये उनके आगे पॉइंट कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर में मैंने डेटा लिख रखा है कहीं पे, है ना, एग्रीकल्चर में ये डेटा लिख रखा है कि सपोज जैसे नीड है तो कि 70% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो वी नीड टू फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि हमें फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना है। या मैन्युफैक्चरिंग में है तो कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसका डेटा मेरा एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में लिखा हुआ है, तो इस टॉपिक में बस मैं इतना ही लिखूंगा। फिर आएगा चैलेंजेस, सेम, जब चैलेंजेस होगा तो मैं इंक्लूसिव ग्रोथ के चैलेंजेस अब ब्रॉडली ही सोचूंगा कि यार इसमें इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है, इन्वेस्टमेंट के चैलेंजेस क्या है, इसमें पॉलिसी के चैलेंजेस क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी के क्या चैलेंजेस है। ये फ्रेमवर्क ही लिखूंगा उस वाले नोट्स में जो आप बोल रहे थे ना 1 पेजर, उस वाले नोट्स में। अब मैंने चैलेंजेस कर लिया, अब वे फॉरवर्ड। अब जब मैं वे फॉरवर्ड सोच रहा हूँ सो आई शुड हैव अ आइडिया कि यार जब ब्यूरोक्रेट सोचता है तो वो कमेटीज या रिकमेंडेशन सोचता है, सो आई शुड थिंक यार कोई इंक्लूसिव ग्रोथ पे कमेटी है, ओके कोई तो कमेटी है, या नीति आयोग की कोई कमेटी है, यस। तो मैं क्या करूंगा, फिर नीति आयोग का रिकमेंडेशंस वो वाला उठाऊंगा जो इजीली रिकॉलेबल है, या जो मैं खुद भी सोच सकता हूँ कि जैसे सपोज इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, अच्छा कैसे करेंगे, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा या सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, तो नॉर्मली है। अब मैं सोशल एक्सपेंडिचर जब बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा सोशल सेक्टर में एक डेटा लिखा होगा कि सोशल एक्सपेंडिचर मुझे इतना बढ़ाना है, या हेल्थ में मुझे 2.5% का गोल है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं अब दूसरा सोचूंगा, अच्छा नीति आयोग तो यार बहुत जगह लिख लिया है, बहुत जगह क्वेश्चंस में आएगा, अच्छा इकोनॉमिक सर्वे का लिख लेता हूँ इस बार, है ना। फिर अब मेरे को सोचना है कि क्या कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, अब मैं सोचूंगा क्या मेरे को फाउंडेशन नोट्स में मेरे को बेस्ट प्रैक्टिस दे रखी है, अच्छा अगर सर ने दे रखी है तो गुड, वेरी गुड, वहां से मैं उठा लूंगा वही बेस्ट प्रैक्टिस, नोट्स वेस्ट तैयार हो जाए, नहीं होगा तो मैं फिर गूगल करूंगा, क्योंकि मुझे अब आइडिया आ चुका है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर दिखना कैसे चाहिए। और वो फिर वो नोट्स पे डिपेंड नहीं करता है, फाउंडेशन नोट्स पे। जब फाइनल नोट्स बनाते हो ना, आप आंसर बना रहे होते हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरह सोचूंगा ये आंसर होगा। अब जब मैंने ये बना लिया, अब सपोज ये मैंने उसके लिए बताया जो बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है, जहाँ के पॉइंट्स ना दूसरे टॉपिक से आ रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने जब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया ना, कमिंग टू नेक्स्ट जो बहुत रैंडम क्वेश्चन होता है उसको कैसे हैंडल करोगे। अब इसी पर्टिकुलर केस में पहले बता देता हूँ, अब मैं इसमें ग्राफ भी सोचूंगा, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ का कोई ग्राफ हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है, तो अगर वो है तो मैं डाल दूंगा, उसको बना लूंगा। पहले ही मैं सोच लूंगा कि मेरे को प्रेजेंटेशन में क्या डालना है इसी में। अच्छा रीजनल डिवाइड है तो रीजनल डिवाइड में मैप आना चाहिए मेरे पास कोई, तो मैं वो नॉर्थ साउथ डिवाइड वाला मैप डाल दूंगा। अच्छा मुझे उसको और अच्छा करना है तो मैं उसमें दिखा सकता हूँ कि यार इधर या हेल्थ का बता दिया, IMR का बता दिया, किसी का डेटा बता दिया कि यहाँ पे ये डिवाइड है, या लिटरेसी का ही बता दिया कि सर्टेन स्टेट्स में इतनी कम लिटरेसी है, कहीं पे ज़्यादा है, तो इंक्लूजन नहीं है। तो ये पहले ही सोचना पड़ेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ आएगा तो ये डेटा बना, ये ग्राफ बना दूंगा। जैसे सेमीकंडक्टर का था क्वेश्चन, तो मैंने सेमीकंडक्टर के प्लांट्स का ब्रेनस्टॉर्म करते हुए सोचा था कि प्लांट्स जितने भी अभी 3-4 ही आए थे तो उनका मैप बना दूंगा अगर आएगा तो ये पहले आपको अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। अब ये जो मैप था वो फाउंडेशन में थोड़ा ना दिया था मेरे को, सेमीकंडक्टर अभी आया है, फाउंडेशन वो पहले किया था, तो ये कहीं से जब मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। बट आइडिया कहाँ से आया था, आइडिया मुझे वो जब टीचर्स डिस्कस करते हैं क्या चीज़ होनी चाहिए, तो आइडिया वहीं से आया था। तो वो मैंने उसी आइडिया सोचते हुए कि यार ये मैप तो मैं इधर यूज़ कर सकता हूँ। या अब आप जैसे शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं, किसी और टॉपिक का बताता हूँ जो बहुत स्पेसिफिक है। सपोज जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है,
सो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर्टिकुलरली मैंने सोचा था कि इस साल शायद क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन अगेन जो क्या उनके 100 ईयर्स हुए हैं। जैसे आप एनालिसिस करेंगे टीचर्स सब यही बताते हैं कि 100 ईयर्स रिपीटेड पैटर्न्स, उनसे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। तो इंडस वैली का आना था क्योंकि 100 ईयर्स हो गए थे उसकी एक्सकवेशन के। तो अब ये क्वेश्चन अगर आ गया सपोज, तो आई शुड हैव अ वेरी गुड इंट्रो। तो इसके लिए मैंने इंट्रो डिसाइड किया। तो ये इंट्रो कोई फाउंडेशन नोट से किसी बुक का इंट्रो नहीं, खुद बनाया हुआ इंट्रो था कि मैं स्टार्ट इससे करूँगा कि रिसेंटली नहीं, इट हैज़ बीन 100 ईयर्स व्हेन आर डी बनर्जी एंड एक और दयाराम बनर्जी आई थिंक, हाँ हाँ, उन दयाराम साहनी, उन दोनों को कोट करके आई स्टार्टेड माई इंट्रो दैट 100 ईयर्स बिफोर R.D. Banerjee and Dayanand Sani excavated the Mohenjo-daro and Harappa, and the world witnessed the Sindhu civilization for the first time. तो ये इंट्रो मैं प्रिपेयर करके जा चुका था क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आ सकता है। अब सब में नहीं कर पाओगे बट जहाँ कर सकते हो वहाँ तो आप बना ही लो। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन है, उसका आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर न्यूज़ में कभी तो आएगा ही आंसर। PLI का है तो उनका बना लिया इंट्रो। तो इससे क्या होता है, अब जब मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उसके भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, आर्किटेक्चर एस्पेक्ट है, स्कल्पचर एस्पेक्ट है, ये डायमेंशंस है। तो मैं जब शॉर्ट नोट्स बना लूंगा मैं लिखूंगा आर्किटेक्चर एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं दूसरा स्कल्पचर है तो ये वाला एक एग्जाम्पल, उसमें ये था पर प्लानिंग थी एक एग्जाम्पल। अब उसका एक डायग्राम होना चाहिए मेरे पास, डायमेंशंस को बढ़ा दूंगा। अब जब हम ये कर रहे होते हैं ब्रेनस्टॉर्म, अब आप सोच रहे होगे कि मैं पूरा आंसर ही बना रहा हूँ। एक्चुअली पूरा आंसर नहीं बना रहा, यही शॉर्ट नोट्स हैं। पूरा आंसर तब होता है जब इनके अंदर फिलर वर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ, जैसे मैग्निफिसेंट क्राफ्टरी, ये सब वोकैबलरी है। इसके अलग नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स जो हर जगह यूज होगा। अब जैसे लैक ऑफ इंफ्रा लिखने के भी 3-4 तरीके हैं। आप सिर्फ लैक ऑफ इंफ्रा नहीं लिख सकते हो, लैक ऑफ फाइनेंस नहीं लिख सकते हो, आप लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, राइट। अब ये मेरे अलग नोट्स होंगे वोकैबलरी वाले, जहाँ पे मैं लिखूंगा सिर्फ डैश गैप, डैश डेफिसिट, उसमें फिर मैं इंफ्रा डाल दूंगा, उसमें मैं फाइनेंस डाल दूंगा, उसमें मैं कुछ और डाल दूंगा, या अंडर फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अलग है, ये वोकैबलरी है, ये नोट्स। इसलिए जब हम फाउंडेशन के नोट्स करते हैं तो वो लॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि ये आपको पॉइंट्स दिए गए होते हैं, ये वोकैबलरी भी दी गई होती है, इसलिए वो बड़े होते हैं। वो वोकैबलरी हटा दो, एग्जाम्पल याद रख लो, हो गए नोट्स। अब इकोनॉमी में हर जगह इंफ्रा फंडिंग का प्रॉब्लम है, हर जगह आप यही लिखने, एक ही चीज लिखने वाले हो ना। तो फाउंडेशन में आप 10 बार वही सेम पॉइंट लिख रहे हो तो वो नोट्स बड़े हो जाएंगे। उसी को आप हटा दोगे तो वो शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। उसी की वोकैबलरी एक जगह लिख लोगे तो उसके हो जाएंगे। तो मैंने शॉर्ट नोट्स इसके भी बना रखे थे वोकैबलरी के, कि जब चैलेंजेस आएंगे, कहीं भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड होगा तो उसके 4 वर्ड ChatGPT को बोल दिया था कि यार डिक्लाइनिंग कुछ ट्रेंड हो, उसके आप बता दे मेरे को कि क्या क्या वर्ड्स होने चाहिए। तो डिक्रीज होता है और डिक्लाइनिंग हो सकता है ऑब्वियसली, रिड्यूस्ड हो गया, सेम इंक्रीज के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, एनहेंस यूज़ कर सकता हूँ, और ऑगमेंट यूज़ कर सकता हूँ। हर बार ये थोड़ा लिखूंगा कि इंक्रीज फंडिंग, ऑगमेंट फंडिंग, एनहेंस फंडिंग, और ऐसे ही बूस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये तो जस्ट वोकैबलरी के कीवर्ड्स हैं। तो आपके पास 3 कीवर्ड्स होने चाहिए वोकैबलरी के, कुछ एकेडमिक कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ये एक एकेडमिक कीवर्ड है जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए है। कुछ बड़े जार्गन्स होने चाहिए जैसे विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो पेपर के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह पॉइंट्स देती हैं। AI है वो हर जगह ही होगा, चाहे आप इकोनॉमी में हो AI, मैन्युफैक्चरिंग में हो AI, लेकिन उसको लिखने के लिए आपको फिर 10 तरीके चाहिए होंगे। हर बार आप इंटीग्रेट AI लिखोगे, कई बार लिखोगे हार्डनेस AI, कई बार लेवरेज AI। तो ये जो 3-4 वर्ड है इनकी अलग अगर आपके वोकैबलरी होगी तो आप फिट करते जा सकते हो। बेसिकली पजल है, इधर से कुछ लेकर आए, इधर से कुछ लेकर आए, फिट करते चले गए। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। और शॉर्ट नोट में बेसिकली आपको यही याद रखना है, बस उसका एक डायमेंशन और एक एग्जांपल या डेटा या फिर कोई ग्राफ। एंड जब आप बोल रहे थे कि सेकंड पार्ट टू द क्वेश्चन कि आप फिर ब्रेन वो कैसे करते हो टफ क्वेश्चन को टैकल, ऐसे ही टफ क्वेश्चन टैकल हो जाता है क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। फॉर एग्जांपल AI या रिमोट सेंसिंग वाला जो क्वेश्चन था वो स्पेसिफिकली पूछा था कि इसमें कैसे यूज़ करोगे। और तो वो एक टफ क्वेश्चन मैं मानता हूँ क्योंकि वो मैंने भी कभी पहले पढ़ा नहीं था, सबकॉन्शियस नॉलेज थी बस कि भाई जैसे सिविल इंजीनियरिंग में कभी पता है कि रिमोट सेंसिंग ऐसे यूज़ होती है और AI ऐसे यूज़ होता है। अब मैंने वहाँ पे स्वामित्व का कार्ड, ड्रोन का एक मैप बना दिया था। अब वो आइडिया कैसे आया था, क्योंकि मैं पहले ही ब्रेनस्टॉर्म कर चुका हूँ काफ़ी सारे डायग्राम्स को ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कि डायग्राम्स बनते कैसे हैं। ये नहीं, वो डायग्राम नहीं रटना है आपको रटना है कि बनते कैसे हैं।
कि वेन डायग्राम बनाना है या फिर कोई जैसे कोई कंटेंट है उसको पिक्टोग्राफिक फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं। तो वो सब ये सब एक्चुअली आर्ट है। तो अगर आप बेसिक समझ जाओगे ना, फिर आप उस आर्ट में आओ कि उस बेसिक को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है आर्ट में। वो आपको पता चलेगा जब PT60 का कंटेंट देखेंगे, क्योंकि एट द एंड कोई तो वो कंटेंट बना रहा है ना, वो कहीं से तो बन रहा है, कोई तो बना ही रहा है, वो उस कंटेंट को ही लेकर उस पिक्चर में लेकर आ रहा है। तो वो आप किसी भी टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हो। सो सेम AI रिमोट सेंसिंग अगर मैं ब्रेनस्टॉर्म करना चाहूँगा तो कैसे सोचूंगा, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में कैसे कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, यस हो सकता है कि जो स्पेशियल डेटा है वो मेरे को ये बताएगा कि फैक्ट्रीज कहाँ लगनी चाहिए। तो जब ऐसे सोचोगे, अब आपने हैंड वोकेबलरी आपके पास है ही ऑलरेडी, उसको तो आपने अच्छी कर ली अपनी इंग्लिश वोकेबलरी, तो पॉइंट्स फिट हो जाएगा, बन जाएगा पॉइंट्स। और जब आप लिखोगे कि चैलेंजेस, आप गैप्स ही लिखोगे कि इंफ्रा गैप्स है इंडिया में, इसलिए हम AI रिमोट सेंसिंग नहीं कर रहे हैं, या फंडिंग का इश्यूज है। फिर उसमें आप कुछ स्कीम्स पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, जब टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो हर टॉपिक का बेसिकली यही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट वाई, पॉजिटिव नेगेटिव स्कीम्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वे फॉरवर्ड कि आगे क्या करना है। Amazing. Any other question? Okay. Coming to interview, because you also have to go Yes, somewhere. sir. So coming to interview, how was that? Like, how much did you focus upon DAF? How much on current affairs? And what would you say was the environment of your interview? And if there is some interesting question which was asked of you, and how Yes. did you handle that? If you can share that. Sir, it was an amazing experience, and मेरा interview it was on the second day, वो भी Okay. first, Okay. yes, 9th December को ही था. So I didn't have much time to prepare. Also because first time था, so I was very confused about the DAF कि लिखूँ क्या उसमें, and there were lot of suggestions कि ये डाल दो वो डाल दो, and then उसके बाद I decided something, क्योंकि डेट आ गई थी और उस वक्त मैं फॉरेस्ट का एग्ज़ाम भी देने गया था मेंस का, जो मैं देना नहीं चाहता था, बट देन मैं चला गया उसको देने के लिए। तो मैंने फिर कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, आई गेस 3 or 4 आई गेव, एंड जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। इट वाज अ राउंड टेबल और काफ़ी क्लोज ही बैठे, जैसे मैं इधर बैठा हूँ अभी, आप जितने क्लोज हो ऐसे ही, यस, मैम सामने थी, 2 मेंबर ऐसे, 2 मेंबर इधर थे, टोटल 5 मेंबर्स, एंड जो बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगा, आई थिंक जो रैंडम, पहले तो मैं बताता हूँ क्या क्या पूछा। हाँ, सो द इंटरव्यू स्टार्टेड विद वाई यू वांट टू जॉइन द सर्विस। सो वहाँ पे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वाई, तो वहाँ से वो चेंज हो गया था, मतलब कि शी वॉज सेटिस्फाइड, मैम वॉज सेटिस्फाइड, एंड फिर वो जो नेक्स्ट मेंबर्स पे क्वेश्चन गए थे वो जॉब रिलेटेड ही थे। सो आई गेस क्योंकि मैं जॉब से आता था तो नेचुरल था कि जॉब से क्वेश्चंस आने थे। मॉक इंटरव्यू में भी दे एक्चुअली उन्होंने जॉब से नहीं पूछा था, मॉक इंटरव्यू के अंदर दे वेंचर्ड इनटू सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। तो मैं खुद भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने चालू कर दिया था इंटरव्यू से पहले तो उससे भी थोड़ा डर लगने लगा था, बट देन फिर जॉब से पूछा तो आई थिंक वो सही था कि जॉब से आई वॉज एबल टू हैंडल दैम। देन करंट अफेयर से पूछा, और एक मैम ने इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स से पूछ लिया था। सो आई गेस रफली आई वुड से कि मिक्स ही रहता है। सो सेक्शन 7 से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जो हॉबीज थी, इनफैक्ट जो मतलब कंटेंट तो अच्छा ही था, आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट आस्क। एंड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज योर फियर, ओके, एंड मैं ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करके गया था। ओके, हाँ, सो मैं थोड़ा सोचा, और इसी मोमेंट पे मैम ने भी थोड़ा एक ऐसा लाफ्टर वाला मोमेंट हो गया था वहाँ पे, थोड़ा ओके, हंसने वाला, कि मैम ने ये कमेंट दिया था जिससे थोड़ा क्या कहते हैं, सब लोग लाइट माहौल हो गया था, तो मुझे एक थोड़ा टाइम भी मिल गया उसी क्वेश्चन को सोचने का भी, ओके, उस क्वेश्चन पे। तो फिर मैंने यही बोला कि सर आई वांट टू, अगर मैं कोई अपने इफ आई एम नॉट परसुइंग समथिंग विच आई एम इंटरेस्टेड इन, दैट वुड बी माई फियर। देन ही वॉज लाइक ओके, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपने दिल की चीज ना कर रहा हो। देन आई टोल्ड हिम दैट सर समटाइम इट हैपन्स, वी एंगेज इन मैनी थिंग्स विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, and then later we realize, but that is how we learn actually, that is how we learn, and we commit mistakes, and then उसके बाद फिर उन्होंने एक पूछा, अच्छा अपने कॉलेज कोई एक्सपीरियंस बताओ, पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई वाज एबल टू शेयर माय कॉलेज एक्सपीरियंस, कहाँ पे मैं कुछ चीज़ों में एंगेज था। देन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी,
एंड आई थिंक वो एक मोमेंट था जो मुझे लगा कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बाकी इट वाज वेरी गुड. There was a question also about like if you are in Andaman and there is a tsunami. यस. हाँ, सो वो क्वेश्चन एक्चुअली आया कैसे था कि वो सुबह उसने पूछा कि करंट न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो, तो मैंने सर को बोला कि सर थोड़ा सा पढ़ के आया हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या होता कि घुसा अंदर, सीधा अंदर ले गए, 5 मिनट भी नहीं बैठा होगा, लाइक 5 मिनट्स बैठा होगा, पहले दिन पहले ही था, Okay. सेकेंड डे फर्स्ट Second. इंटरव्यू था. हाँ. एंड तो उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला कि उन्होंने पूछा कि जापान में क्या हुआ है, सो मैंने आई सेड दैट सर आई थिंक इट इज़ चाइना एंड जापान आर फेसिंग सम इश्यूज, वहाँ पे कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके बीच में. तो उन्होंने कहा नहीं कुछ अर्थक्वेक आया वहाँ पे, सुनामी आने वाली है. सो वहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्टेड Okay. कि अच्छा ठीक है, ये बताओ अंडमान निकोबार के अगर इफ़ यू आर डीएम तो क्या करोगे. Okay. सो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई, एंड देन ही वाज लाइक उन्होंने कुछ ऐड किया, अच्छा तुम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करोगे, यस सर. मैंने कहा यस सर आई विल डू. So that ऐसे था. like वो एक जो role based question है, some हाँ responsibilities given यस to you. यस. You have to do that. ठीक है. Any like final words you'd like to say to aspirants, like how should they think about the preparation and different stages? And so your preparation goes through many stages. Yes. In early days you are confused, Yes, overwhelmed yes. also a little bit Yes, because of yes. so much of content. Then you get some grasp of it. Yes. You evolve. Yes. But then you later realize that no more validation is Yes, required. yes. So how does one manage this entire process, this entire preparation, without being overwhelmed and without like having without suffering from low FOMO. moments and FOMO Yes, also. yeah. There is that is actually a big issue right Yes, now. yes. That a lot of students have this FOMO that वो देखो वो source पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है. हाँ. So how to filter all of that and how to do this much more effectively? Any final words if you have? In summary, I would just say that try to make your preparation like chill. मतलब थोड़ा gamified ही रखना चाहिए उसको, और try to brainstorm a lot. That is very important. Critical thinking, self-analysis, and most important is that start with reading PYQs. Okay. If you don't know anything, just read PYQs, see what kind of questions are coming, and that will give you an idea कि भाई आगे कैसे चलना है. And it is a big journey, और इसमें बहुत सारे issues होते हैं, and some are very lucky that उनको family से support होता है, financial support भी होता है. Some are not that lucky, जिनको financial support भी नहीं होता है, या families में भी issues हो रहे होते हैं, या फिर कोई और challenges होते हैं, personal challenges होते हैं, या health के challenges होते हैं. जैसे particularly मेरे को मेंस के, मैं actually कॉलर लगा के गया था, जो होता है ना. Okay. हाँ, क्योंकि मेरे बहुत इधर नेक में पेन था उस वक्त, और उस सिचुएशन में मैंने लिखा था. बट यू हैव टू फोरसी दैट सिचुएशंस, तो उसके लिए आप तभी कर सकते हो. क्योंकि मैं जब अभ्यास देने गया था, एक्चुअली सर ये हुआ था, मैं GS4 का एग्जाम दे रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट, क्योंकि वो 1 2 3 लगातार हो चुके थे 3 दिन, और मेरे बहुत पेन हो रहा था. मैं उठ के आधे घंटे पहले निकल गया था. बट दैट डे आई रियलाइज कि यार ये वहाँ नहीं होना चाहिए, तो मुझे सारी प्रिपरेशन करनी है. सो इफ़ यू सी योर सेल्फ सिटिंग इन दैट रूम, एंड आपने एनालाइज कर लिया उस दिन मैं क्या करूँगा, उस दिन वो आंसर आएगा तो मैं क्या ब्रेनस्टॉर्म करूँगा. मैंने तभी बोला था कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से, हमें आंसर के हिसाब से नोट्स बनाने, हमें अपने PhD नहीं करनी है इसमें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेफरेंसेस दिए जाते हैं. यहाँ पे आपको ये नहीं बताना कि अगर कोई मॉडल है, जापान मॉडल है, तो मैं बस इतना ही लिखूँगा हेल्दी जापान 21, मैं उसकी मॉडल की डिटेलिंग नहीं याद रखूँगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ PhD. उस पर सेम वर्ड पे एक पेपर भी पब्लिश हो सकता है ना, सेम कंसेप्ट पे. तो वो यहाँ पे आपको रेफरेंसेस देने हैं, आपको अवेयरनेस देनी है, तो वो आपको एग्जाम को विजुलाइज करना है, आपको हर चीज़ देखनी है. अगर उस दिन मैं बीमार हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एडिकेट न्यूट्रिशन है कि नहीं है, क्या मैं रेड बुल वगैरह लेके जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, क्या मेरे पास सब सपोर्ट है, वापस आऊँगा तो मैं क्या करूँगा. वो सारी सिचुएशंस को आप एनालाइज करते रहिए अगर जब एग्जाम के पास हो, और उससे पहले तो जो मैंने 3 स्टेज फ्रेमवर्क बताया उस पर फोकस कीजिए, एंड और अपना फेथ रखिए. जब आप सोचने लग जाओगे ना, और अपने फेथ होगा, अरे मैंने सोच लिया है, अब मैं कुछ तो लिख के आ जाऊंगा और पेपर कंप्लीट करके हो जाएगा. तो इट्स अ प्रोसेस, और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इट इज़ डूएबल. Anyone else? Yes, go ahead. The issue with most UPSC aspirants is not effort, it is foundation. A strong foundation means 3 things. Learn in the right sequence so subjects reinforce each other. Apply early through answer writing and testing. Correct continuously through proper diagnosis and feedback. This is what the GS Foundation course at Vision IAS is built around.
Connected GS coverage, not isolated subjects. Early writing and testing, not last-minute panic. Diagnostic test analysis with clear corrective steps. Current affairs organized into usable themes for prelims and mains. Regular mentorship to prevent drift. Effort is common, structure is rare. If you are serious about UPSC, start by getting the foundation right. Upcoming classroom batches: Karol Bagh 9 March 11 am, 13 March 8 am and 24th March 5 pm. And GTB Nagar batches for English 17 March 8 am, 25 March 6 pm. And for Hindi 16 March 11 am. For more details, visit our website or call us on the given numbers. हाँ पूछिए। अभी तो यस स्टार्टिंग टाइम में यू जस्ट रीड देम, ठीक है। अभी रीड करो पीवाईक्यूज को, अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है तो उस पर क्या क्या टाइप के पीवाईक्यूज हैं, उसमें क्या वाई पूछा है, उसमें एग्जामिन पूछा है, क्या पूछा है। इवन आंसर्स भी देख लो, हाँ आंसर्स भी देख लो। हाँ अगर आपको ये अच्छा ऐसे लग रहा है तो ये करिए। इसमें एक्चुअली क्या प्रिपरेशन ऐसी है कि जो आपको खुद अच्छा लग रहा है उस तरीके से करिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मेरे सजेशन मैंने वो चीज़ करी नहीं है। मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जो पहले प्रिपेयर करके जाऊँ। मैं आज तक नहीं गया हूँ, मैं किसी क्लास में मतलब स्कूल से लेके आज तक कभी नहीं गया हूँ मैं कि मैं पहले प्रिपेयर करके कहीं पे जाऊँ। जब मैं जेई भी निकाला था तो भी बच्चे आते थे जो प्रॉब्लम करके आए हुए होते थे, मैं नहीं होता था। मैं थोड़ा बैक वाला हूँ। मैं बताया ना आपको, क्लासेस भी मैंने रिकॉर्ड करके करी है सारी एक साथ। जब मेरा मन करता तो एक साथ कर ली, फिर छूट गई, फिर बाद में कर ली, ऐसे करा है। तो मैं वैसा बंदा तो नहीं हूँ, तो मैं वो सजेशन नहीं दे सकता। बट इफ़ यू फील जो आपको लग रहा है क्लास में पढ़ के जाओ तो वो आपके लिए अच्छा है। हाँ देखो अब आप ये कंफ्यूज हो गए तो अब फिर आपका फिर क्या हो जाएगा, फिर वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप मैं कोई सोर्स बताऊंगा देन यू सॉर्ट कि यार ये तो इससे मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे दूसरा, या तुम आपके टीचर ने कोई और सोर्स बता दिया तो देन यू विल बी कंफ्यूज ना कि मैं विजन वाला पढूं या कोई और बुक पढूं या कौन सा पढूं। तो इसलिए बोल रहा था कि आप इसमें इंपॉर्टेंट है आप सोचें, क्लास में जाइए, अभी क्लास में ही जाइए। इतना पेन मत लीजिए पढ़ के जाना है तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी चीज़ों को पहले ही प्रिपरेशन है तो अब कस्टमाइज करिए अपने आप को, सिलेबस से कस्टमाइज कीजिए। ये बहुत बड़ी जर्नी है, बार बार सिलेबस पे आना पड़ता है। मैं खुद भी 2025 का अभी ख़त्म करके मैं दोबारा एथिक्स स्टार्ट किया था और मैं फिर से सिलेबस को पढ़ा था कि सिलेबस वाइज फिर से देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये हिट एंड ट्रायल है, ऐसा कोई परफेक्ट वो नहीं होता है। इसलिए आपकी मर्जी है तो पढ़ के चले जाइए कोई एक बुक से, बट देन फिर अगेन अगर कोई बाद में बोलेगा कि दूसरा सोर्स से पढ़ूंगा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको डाउट आ जाएगा। तो इतना स्ट्रेस लेके नहीं जाना है, आराम से करना है। आई थिंक एक थोड़ी देर पहले भी इन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे लगता है सारे एस्पिरेंट्स को ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, दैट ये जो आपने बोला ना कि मैं बाकियों से अच्छा हूँ, इस पर फोकस मत करो। अभी फोकस ये है कि आई हैव टू लर्न, दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इज गिवन इन द यूपीएससी सिलेबस, आई वांट टू लर्न दिस सब्जेक्ट। उसका आउटकम जो है, एक हमने बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब शुरू में ही मैं एंड गोल सोचने लगूँ कि ये हो जाएगा, तो पहले तो प्रोसेस को हम इंजॉयबल बनाना ज़रूरी है, हैबिट का पार्ट बनाना बड़ा ज़रूरी है, एंड यू रियलाइज दैट अदर थिंग्स आर ऑटोमेटिकली फॉलिंग इन प्लेस। हाँ तो एनसीईआरटी बिकॉज ये बहुत बेसिक है, हमारा एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा, तो इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे दैट आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हो तो इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप फाउंडेशन थोड़ा सा पढ़ के आओ। एंड आई थिंक मैंने एनसीईआरटी से तो बोला ही था कि वो तो बेसिक है, बट एथिक्स में कोई एनसीईआरटी नहीं है ना, कौन सी करके आओगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें आप देखो एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, यू हैव टू टेक द फील, उसको इनबिल्ड करना पड़ेगा। अगर सोक्रेटिस ने कुछ बोला है तो उसको समझ के करना पड़ेगा। सोक्रेटिस ने क्या बोला है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सो आपको एग्जाम ही नहीं करना पड़ेगा ना, तो वही ये प्रिपरेशन का पार्ट है। Anyone else would like to ask? मैंने वो जो विजन जो टेस्ट सीरीज आती है ना वो 30-35 टेस्ट की, मैंने एक जैसे विजन आईएएस की कोचिंग है तो मैंने उनकी एक कर ली थी बस। हाँ एक दिन एक लगा ली तो 30 दिन में वो खत्म।
30-35 दिन में वो खत्म हो जाएंगी, 30-35 डेज। अब एक संधान इनके पास ऑप्शन है, आपके पास आई डोंट थिंक आपके टाइम पे नहीं था संधान। नहीं हमें पास जहाँ मेरे पे को आप अवेयरनेस भी नहीं है उसकी। हाँ, तो संधान में ऐसा होता है कि आप टॉपिक सब टॉपिक चूज कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरेट कर हाँ, सकते ओके हो, ओके। और उसमें PYQ है, लास्ट 5-10 साल के जितने भी हाँ, क्वेश्चन है सारा एक बैंक बना हुआ है हमारा, तो इस तरीके से कुछ है। सो मतलब मैं तो थोड़ा वैसा मतलब आई डोंट नो, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बट इफ़ यू सी अगर वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट आई गेस वो मेरे को सिंपल लगता था कि एक देना है, सेकंड देना है, थर्ड देना है, और वो सिंपल है। ऐसी एक का कर लिया, ऐसी दूसरी का कर लिया, किसी एक का तो दो हो गई, दो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज़ लग गए तो हो गया ऐसे। Anyone else would like to ask some question? Oh, so this was such I had a long list of questions actually, but you said that कि आपको कहीं भी जाना भी है, but this was such an enriching experience. Thank you, I'm sir. very sure for aspirants, even for me, and all the best. Thank you, sir. All the best for futures. Thank you, sir. Okay.